دل دوست محبت از منتشا پارٹ 1۔ ایسی دیوانگی دیکھی نہیں کہیں، ایسی دیوانگی دیکھی نہیں کہیں، میں نے اس لیے پیار سے جانے جانا، دیوانہ تیرا نام رکھ دیا، تیرا نام رکھ دیا، تیرا نام رکھ دیا۔ وہ دھڑام سے اندر آیا تھا اور پھر اسے سامنے بیٹھے شخص کے دونوں گالوں کو کھینچتے ہوئے ناک پر لب رکھتے کہکا لگاتے گانے کی ٹانگیں، ہاتھ، کان، پاؤں سب توڑا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے زاویان، انسانوں کی طرح نہیں آ سکتے کیا تم میرے روم میں؟ میر حشمت اللہ افندی نے مصنوعی غصے سے گھولتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو میں کہیں سے بندر لگ رہا ہوں؟ اس نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ لگنے والی کیا بات ہے، تم ہو وہ جو اپنے سامنے کھڑے اپنے گھبرو جوان پوتے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے لائٹر موڈ میں خود کو کرتے ہوئے کہا۔ خیر اب حشمت جانی، یو ٹیزنگ می۔ اس نے پورے دانت نکالتے حشمت اللہ کے ہاتھ سے اور ان کی کتاب و چشمہ لیا تھا۔ ارے یہ کیا، واپس کرو، پیج مکس ہو جائیں گے۔ انہوں نے کتاب لینی چاہی تھی۔ بالکل نہیں، ماسی بتا رہی تھی کہ آپ نے میڈیسن نہیں دی۔ میڈیسن پھر ریڈنگ، میرے پیارے بچے۔ اسے ہونٹوں کو گول گول کرتے فلائنگ کس اچھالی تھی ان کی طرف۔ لا حول ولا قوت استغفر اللہ۔ تمہاری حرکتیں دیکھ کر میرا ذرا دل نہیں کر رہا کہ تمہیں انگلینڈ بھیجوں، وہاں تو اچھے اچھے بگڑ جاتے ہیں، تم تو پورے بدماش ہو۔ انہوں نے کہتے ساتھ ہی اسے دھمکی دی تھی۔ ارے تو میں کون سا جانا چاہتا ہوں، یہ تو چاچو کی ضد ہے، آپ سب مجھے مل کر پھنسا رہے ہیں۔ زاویہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں جی بیٹا، کیونکہ تمہارے چاچو تمہیں انسان بنتا دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ اوکے فائن، میں ہوں اپنے ہشمی جانو کا بندر، اب میرا جانو جلدی سے میڈیسن لے لے۔ کیا یار، اتنے پیار سے تو دادو میں نے کبھی نہیں کہا کسی اور کو۔ اس نے ہاتھ میں میڈیسن نکالتے ہوئے کہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تمہاری دادی ہی میرے سامنے ہو، بالکل اس جیسی حرکتیں ہیں تمہاری۔ حشمت اللہ افندی نے اسے میڈیسن نکالنے سے منع کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا چاچو کب آئے؟ وہ تو میٹنگ کا کہہ رہے تھے۔ زاویہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ کینسل ہو گئی تھی، ڈیلیگیشن آیا نہیں اور وہ اس وقت اپنے کمرے میں ہے، اداس دیوداس بنا بیٹھا ہے۔ حشمت اللہ خان نے کہا تھا۔ آپ شادی کیوں نہیں کرواتے چاچو کی؟ اس نے گہری سوچ میں جاتے ہوئے کہا۔ میں خود تو اس کے نکاح نامے پر سائن کرنے سے رہا، کتنی بار کہا ہے، اسے نہیں مانتا۔ اس بے وفا مطلب پرست لڑکی کے لیے اپنی زندگی کو زنگ لگانا چاہتا ہے۔ انہوں نے افسوس سے کہا۔ اگر میں بھی کل کو ایسا ہی نکلا تو پھر مجھے بھی کسی لڑکی سے جان لیوا عشق ہو گیا، اس قدر برباد ہو گیا اس کی محبت میں کہ خود کو بھلا بیٹھا۔ پھر انہوں نے کھوجتی آنکھوں سے حشمت اللہ افندی کی طرف دیکھا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تمہاری اور میری بونڈنگ بہت الگ ہے، ویسے بھی تم چونا کھانے والوں میں سے ہو، لگانے والوں میں سے نہیں۔ حشمت اللہ افندی نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا یار ابھی ناٹ فیئر، آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ زاویہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بندر، وہ کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ اس کی سوچ کا تخیل لمحے بھر میں ٹوٹا تھا، اس کی یادیں حسین سفر طے کر کے اس کو ہوش کی دنیا میں واپس لائی تھیں۔ زاویہ نے گاڑی کے شیشے سے پار دیکھا تھا، گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہشمی جانی، وہ گاڑی سے نکل کر انٹرس گیٹ کی طرف بڑھا تھا اور پھر بھاگتے ہوئے اس نے حشمت اللہ افندی کو گلے سے لگایا تھا۔ ابھی آفٹر 3 years I will feel your جفی، اس نے ان کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے کہا تھا۔ میرا بچہ، انہوں نے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ برسوں کی ریاست کامیاب ہوئی تھی ان کی، وہ ایک کامیاب بزنس مین بن کر لوٹا تھا۔ یہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اس بن ماں باپ کے بچے کو کیسے پالا ہے۔ 4 سال کا تھا جب اس کے پیرنٹس راکا پوشی پیرا گلائڈنگ کے لیے گئے تھے اور پھر گلیشیئر گرنے کی وجہ سے ان کی موت کا المناک سانحہ ہوا تھا۔ 2 ہی تو بیٹے تھے ان کے، ایک منو مٹی تلے جا سویا تھا اور دوسرے نے اپنی دنیا ویران بنا دی تھی۔ اس کو حق کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کاش آج ان کا بیٹا زندہ ہوتا تو دیکھتا اس کا زاویان کتنا گھبرو جوان بنا اور کامیابیاں سمیٹے پوری آب و تاب سے ان کے سامنے کھڑا ہے۔ ابھی ناٹ فیئر، اس نے ان کی نم آنکھیں صاف کی تھی۔ بڑی، اس نے ساتھ کھڑے احان افندی کے گلے لگتے کہا تھا۔ مس یو زاویان بیڈلی، انہوں نے اس کے گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ 10 سال بڑے ہونے کے باوجود دونوں کی بانڈنگ بہت اسٹرانگ تھی۔ وہ میر فیضان افندی سے 14 سال چھوٹا تھا۔ فرسٹ ایئر میں جاتے ہی میر فیضان افندی کو اپنی کلاس فیلو سے محبت ہو گئی تھی اور ٹھیک 23 سال کی عمر میں اس کا نکاح حشمت اللہ خان نے کروا دیا تھا اور 1 سال بعد ان دونوں نے حشمت اللہ خان کی گود میں زاویان افندی کو ڈالا تھا اور پھر 4 سال بعد دونوں اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ چلو اندر چلیں، حشمت اللہ افندی نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ تینوں اندر کی طرف بڑھے تھے۔
गुड़िया आपी को मिस कर रही हैं, अनमता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आता वो इतनी बुज़दिल कैसे हो सकती है, इसने अफसोस से कहा था। जिल्लत की जिंदगी में जीना बहुत मुश्किल है, इसने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं खुद को कभी भी माफ नहीं करूंगी, इसकी बर्बादी का बायस मैं बनी हूँ अनमता, इसने भराई आवाज में कहा था। वो इंसिडेंट था दीदम, इसने हमेशा की तरह समझाते हुए कहा उसे। 3 साल हो गए हैं आज और अब तक मैं इसको बर्बाद करने वाले तक नहीं पहुंच सकी, मगर जिस दिन मुझे पता चला इस दिन मैं इसका हशर बिगाड़ दूंगी, इसने नफरत से कहा। इंशाल्लाह हम एक दिन इस तक जरूर पहुंचेंगे। और फिर से ले जाकर गुड़िया आपी के सामने खड़ा किया। अनमता इसे तसल्ली देते हुए कहा था, फिर उसकी तरफ देखते हुए पूछा था, हम यहाँ क्यों आए हैं दीदम अपना घर छोड़ के इस गंदी जगह पर? अनमता ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि यहाँ हम सेफ हैं, हमारी माँ रहती है यहाँ और बच्चे अपनी माँ के पास ज्यादा महफूज होते हैं, इसने अनमता की तरफ देखते कहा था। दादाजी कहते हैं कि ये गलत जगह है और हमारी माँ भी गलत है, हम इन पर एतबार नहीं कर सकते, अनमता ने डरते हुए कहा। माँ कभी गलत नहीं होती, दादाजी को कभी भी अपने बेटों को क्यों गलत नहीं कहा, जो हमें इस दुनिया में लाकर खुद जल बसा, हमें इस दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर। हमारे पास बाप का साया नहीं है, तो दादाजी ने सोचा होगा कि हमसे हमारी माँ का छीन ले, वो हमसे और हमारी माँ से अपने बेटे की गई गलतियों का अजाला करवा सके, इसने गुस्से से कहा। आप दादाजी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती, वो हमारे मामले में हमेशा रहमदिल और शफीक रहे हैं, इससे अपनी बड़ी बहन की तरफ देखते हुए कहा। ये रहमदिली और शफकत दिखावा था, इसके प्लान का हिस्सा जो तुमने देखा नहीं। मामा कैसे रो रही हैं, तुम्हें इनके साथ क्या कुछ नहीं किया दाजी ने और इनके बेटे ने? दाजी ने उन्हें कभी कबूल नहीं किया, क्योंकि वो किसी दौर में इस कोठे की जिन्नत रही हैं, मगर अगर वो उन्हें कबूल नहीं कर लेते तो शायद वो दोबारा यहाँ नहीं आती और न ही इनका खून आज यहाँ इस कोठे की 4 दीवारी में बैठा होता, इसने नफरत से कहा था। उन्होंने तो कभी भी नहीं चाहा था ऐसा, आप खुद इस घर को छोड़कर आई हैं, हमारे अलावा वो इस घर का और कौन मालिक है? आप खुद ही इस मलकियत को छोड़कर आई हैं, जबकि दाजी ने तो सब कुछ हम दोनों में बराबर का तकसीम कर दिया था। और कौन है इनका वाली वारिस? हम दोनों के अलावा एक बेटा था, वो भी 4 साल पहले हमें यतीम और इनको लावारिस करके चला गया, अनमता ने भराई आवाज में कहा था। मैं थूकती भी नहीं इस पैसे पर, ये पैसा उन्हीं रिश्तों की तरफ से मिला है ना, जिन्होंने कभी हमें सच्ची खुशी नहीं दी। वो सब पैसा किसी भी ट्रस्ट को दे दूंगी, मेरे लिए मेरी दौलत, मेरा पैसा, मेरी माँ है, इसने फखर से कहा था। दीदम आपको क्यों गुलशन बाई सच्ची लगती हैं, इसने अफसोस से कहा। शट अप अनमता, वो माँ है हमारी, तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता ऐसे इनका नाम लेने का, इसने चलाकर इसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा। मैंने तो वही कहा जो यहाँ सब इनको कहते हैं, गुलशन बाई। जरा सा कमरे से निकलकर दालान में जाकर बैठो तो हर कोई कहता है, वो देखो गुलशन बाई की बेटियां, जो आने वाले दौर में इसको कोटे की कमाई का जरिया बनने वाली हैं, इसने तलखी से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोगों की बातों पर कान क्यों धरती हो? मामा ने कहा है ना, वो कुछ दिनों तक हमें यहाँ से लेकर बहुत दूर चली जाएंगी, इसने तसल्ली देते हुए कहा। झूठ है ये, खुदा के लिए दीदम आंखें खोलें, अपने नहीं कुछ नहीं होगा ऐसा, वो हमारी माँ बनने की सिर्फ एक्टिंग कर रही है, ये सच बहुत जल्द आपके सामने आएगा और तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए अपने साथ साथ मेरी इज्जत को भी दांव पर मत लगाएं, हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके सामने, इसने रोते हुए बकायदा हाथ जोड़े थे इसके सामने। कुछ नहीं होगा, यहाँ हम सेफ हैं, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वहाँ हर शिकारी हाथ लगाए बैठा होगा। खुदारा समझो इस बात को कि आज नहीं तो कल तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हमारी माँ कितनी साबिर और शफीक है, इसने इसके हाथों को अपने हाथों में लेते कहा था। शफीक नहीं, कातला है वो, गुलशन बाई ने जानबूझकर दाजी का एक्सीडेंट करवाया है, वो मरे नहीं है, उन्हें कत्ल किया गया है, और मेरी बात कान खोल कर सुन ले, वो माँ नहीं है मेरी, वो कातला है मेरे बाप की, मेरे दाजी की, इसने रोते हुए चीखते हुए कहा। बाहर की तरफ बढ़ी थी। अनमता बात सुनो मेरी, तुम मामा के बारे में मैं इतने सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकती किसी भी शक की बुनियाद पर, इसने पीछे से इसकी कलाई पकड़ी थी। तभी तबले की भाप की आवाज और घुंघरू के झंकार शुरू हुई थे दलान में। ताईती थक थक, ताईती थक थक थक, गुलशन भाई की आवाज दोनों के समातों में गूंजी थी। अनमता अपने दोनों कानों पर हाथ रखा था और इसे अपनी कलाई छुड़वाकर वो इसकी समातों में जहर बनकर गूंजी थी। डरे उस वक्त से दीदम जब यहाँ ऐसी ही आवाज अनमता बाई की गूंजेगी। इसे नम आंखों से इसकी तरफ देखा था और सीढ़ियां फांकते छत पर चली गई थी। क्या मिला दाजी आपको? पहले मुझसे मेरी माँ छीनी, फिर मेरी बहन भी छीन ली, काश मैं आपकी पोती ना होती, काश मेरी रगों में आपका खून ना होता, इसने नफरत से कहा था। मगर अब चाह कर भी नहीं छीन सकते मुझसे आप कुछ भी, अनमता को समझना होगा और वो समझेगी, इसने पुख्ता लहजे में कहा था। मत करें अभी ये सब कुछ, हम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते,
آپ نے اپنے ایک وعدے کی خاطر اس ساری زندگی سمجھوتے کے رشتے میں نہیں ڈال سکتے، پلیز ابھی، احان افندی نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے کہا تھا۔ میں اپنے دوست کی آخری امید کو نہیں توڑ سکتا، حشمت اللہ نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو، اگر اس نے پہلے سے بھی اس بارے میں کسی اور کو سوچ رکھا ہوا تو، احان نے آخری کوشش کی تھی۔ مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہوگا، وہ اپنے ابی کی ریاضت کو ٹکرا نہیں سکتا تھا، وہ مان بخشے گا میرے فیصلے کو۔ یاد رکھو احان اور زاویان کے فروغ کو، تم نے کبھی میری خوشی چاہی نہیں، انہوں نے افسوس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا ابھی، کچھ معاملوں میں انسان بے بس ہوتا ہے، اس لیے آپ میری محبت کو اس پلڑے میں مت رکھا کریں، اس نے درد سے چور لہجے میں کہا۔ احان افندی کے لہجے میں چھپا درد محسوس کیا تھا حشمت اللہ خان نے۔ کچھ سمجھوتے زندگی میں بعض معاملوں میں بڑے کارگر ثابت ہوتے ہیں میر احان افندی، میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کا وہ سمجھوتا جلد یا ضرور تم تک پہنچے، انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پرومس می ابھی، آپ اس سے زبردستی نہیں کریں گے، نہ ہی ایموشنل ٹارچر، احان نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا چل رہا ہے یہاں، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ زاویہ نے آتے ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آخر تمہیں سدھارنے میں کینیڈا والا بھی ناکام رہے اور نہ ہی تمہاری یونیورسٹی سے یہ کام ہو سکا، احان نے چاول پلیٹ میں ڈالتے کہا تھا۔ یو نو وٹ بڈی، میرا سویگ ہی الگ ہے، وہ سنا نہیں آپ نے، ڈان کو سدھارنا مشکل ہی ناممکن ہے، زاویہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ احان نے منہ میں چمچہ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ڈان کون ہے؟ میں تو محاورے میں بھی میری مرضی سے چلے گا، اس نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ آرام سے زاویان، کیا ہو گیا ہے؟ گلے میں پھنس جائے گا کھانا، حشمت اللہ خان صاحب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے ابھی، سوری، ویسے ابھی یہ افندی ہاؤس کو دلہن کی طرح کیوں سجایا ہوا ہے؟ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ کے بڈی کی شادی کرنے والے ہیں، اور یہ میرے لیے سب سے بڑا سرپرائز تھا میرے آنے پر، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میر احان افندی زوردار کہکا لگا کر ہنسا تھا اور ہنستا چلا گیا تھا۔ کیا ابھی باقی چاچو اپنی شادی کی خوشی میں بخلا گئے ہیں؟ زاویہ نے اس طرح ہنستے دیکھ کر حیرت سے پوچھا تھا۔ زاویان، مجھے ہنسی تمہارے آنے والی حالت پر آ رہی ہے، بیسٹ آف لک بڈی، احان نے پانی پی کر اسے تم سے اشارہ کیا اور ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا تھا۔ ابھی چاچو نیڈس چیک اپ، تنہائی ان کے دماغ پہ چڑھ گئی ہے یا پھر شادی کی خوشی، اس نے احان کی پشت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تھوڑی دیر تک ڈاکٹر کی ضرورت تمہیں پڑنے والی ہے زاویان، اور میری تسلی کی بھی، احان نے جاتے جاتے ہانک لگائی تھی۔ زاویان، کھانا ختم کر کے میرے کمرے میں آؤ، صبیحہ چائے کمرے میں بھجوا دینا، انہوں نے ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ یہ آج ابھی اتنے چپ چپ کیوں ہیں؟ انہیں میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ زاویہ نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ واہ گلشن بھائی، یہ تو تمہاری گود سے جڑے ہوئے وہ ہیرے ہیں جن کی پرکھ مجھ جیسا جوہر ہی کر سکتا ہے۔ سیٹھ وجاہت نے دلان میں سے گزرتی ان دونوں بہنوں کو دیکھا تھا۔ ان کے باپ سے تو اچھا خاصا اپنا حصے کا خراج وصول نہ کر سکی، مگر انہی سے میں اپنی اس آخری عمر کو سنوار ضرور سکتی ہوں۔ وہ بوڑھا جو سام بنا بیٹھا تھا، میرے حصے کی دولت پر میری بیٹیوں کو میرے خلاف کر بیٹھا تھا، وہ کیا سمجھتا ہے کہ اتنی آسانی سے وہ میری بیٹیوں کو میرے خلاف کر دے گا؟ کیسے چالاکی سے میں نے پہلے سے اس کے بیٹے اور پھر اسے اپنے رستے سے ہٹایا ہے۔ ہا ہا ہا، گلشن بائی نے کبھی کچی چال چلنا سیکھی ہی نہیں، اسے مکاری منہ پر سجاتے ہوئے کہا۔ تو کیا وہ تم پر اندھا دھند اعتبار کرتی ہیں؟ سیٹھ وجاہت نے اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے اس کی بالوں کو لٹ کو اپنی انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ بڑی والی تو کرتی ہے، مگر چھوٹی والی بڑے نخرے جھاڑتی ہے۔ وہ ہے تو وہ اس سے 2 سال چھوٹی، مگر عقل کے لحاظ سے اس سے اور مجھ سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ گلشن بھائی نے اس سیٹھ وجاہت کے سینے پر سر رکھتے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں گلشن بھائی، تمہاری عقل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، سیٹھ وجاہت نے اس کے کندھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ چھوڑیں سیٹھ صاحب، آپ کی شرارتیں کرنے کی عادت اب تک نہیں گئی، تم سے کبھی دل نہیں بھر سکتا، تمہارا نشہ الگ ہے گلشی، اس نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس پر قابض ہوتے ہوئے کہا تھا۔ چودھری اسفن سے ڈیل ہوئی یا نہیں؟ وہ اس کی دسترس میں الجھ پوچھ رہی تھی۔ 2 دن بعد وہ 1 ہفتے کی چھٹیوں پر سنگاپور جا رہے ہیں، تمہاری بڑی بیٹی کا پاسپورٹ دے آیا تھا، اسے شام تک وہ پاسپورٹ اور ٹکٹس بھجوا دے گا، اپنے ملازم کے ہاتھ تمہیں بس اب اسے جانے کے لیے منانا ہے، اور یہ کیسے کرنا ہے تم بہتر جانتی ہو، اس نے اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے۔ اس کی فکر چھوڑ دو تم، سمجھو 10 کروڑ پرسوں ہماری دسترس میں ہوں گے، مکاری سے کہتے ہوئے کھلکھلا کر اس نے کہکا لگایا۔ تو تم نے ملک نثار کے خون کو استعمال کر ہی لیا آخر، اب تمہارے کلیجے میں موجود ٹھنڈک مجھے یہاں تک محسوس ہو رہی ہے، سیٹھ وجاہت نے کہکا لگاتے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ آ جاؤ زاویان، دروازے پر ہونے والی دستک پر انہوں نے کہا تھا۔ ادھر بیٹھو میرے پاس، انہوں نے اسے پاس بیٹھاتے کہا تھا۔ جی ابھی بولیں، اس نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ زاویان، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تمہارا، انہوں نے بڑے ٹھہرے اور نرم لہجے میں کہا تھا۔
व्हाट अभी? नो यार, अभी नहीं, मैं तो इतने टफ स्केड्यूल से बाहर निकला हूँ, अब फिर से नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी मुझे 2 साल खुलकर जीना है, इसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। कोई लड़की पसंद है तुम्हें जावियान? उन्होंने इसकी बात का जवाब दिए बगैर अपना सवाल पूछा था। नहीं अभी, ऐसा जैसा आप सोच रहे हैं कुछ नहीं है। अगर मैं कहूँ जावियान, मैं किसी को तुम्हारे निकाह की जबान दे चुका हूँ और तुम्हें मेरी जबान का पास रखने के लिए ये निकाह करना है, तो क्या तुम मेरा मान रखोगे? उन्होंने इसकी आंखों में झांकते हुए बड़ी उम्मीद से कहा था। अभी आप चाचू का भी तो? जावियान, मैं तुमसे निकाह की जबान दे चुका हूँ, मेरे दोस्त की आखिरी उम्मीद थी ये। प्लीज, मैंने बड़े मान से कहा था कि तुम्हें मेरी खुशी की खातिर। उन्होंने इसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा। अभी आप मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। वो लड़की जिसे मैं जानता तक नहीं, कभी देखा भी नहीं और कभी सोचा भी नहीं, कैसे इससे निकाह? आज के दौर में ये नहीं होता अभी। वो आपका दौर था जब आप ऐसी शादियां हो जाती थी। जब आज के दौर में आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आज के दौर में 2 लोगों का एक ही पेज पर होना जरूरी है। ऐसे नाकाम नहीं होते। इसने उनके हाथ पर दूसरा हाथ रखते कहा था। क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला ले सकता हूँ? जावियान, वो मेरे दोस्त का खून है, वो तुम्हारे रंग में ढल जाएगी और फिर अंडरस्टैंडिंग वो तो निकाह के बाद हो ही जाएगी। इसकी इज्जत, इसकी हिफाजत बहुत जरूरी है इस वक्त, वरना बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। क्या तुम मेरे लिए एक समझौता नहीं कर सकते? उन्होंने मुबीम उम्मीद लिए इसकी तरफ देखते हुए कहा था। अभी प्लीज, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करें। यू नो आई लव यू, बट मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता हूँ, वो भी ऐसे इतना हंगामी? लाखों लड़कियों की इज्जत दाव पर लगी होती है, तो क्या मैं सबसे शादी कर लूं? इसने बेबसी से कहा था। तुम्हें मुझ पर इतबार है ना? मैं गारंटी देता हूँ जावियान, तुम्हें इससे बेहतर लड़की और नहीं मिलेगी। उन्होंने मदद तलब नजरों से इसे देखते हुए कहा था। अभी जब आप फैसला कर चुके हैं तो मुझे बिल्ली का बकरा बनाने का तो मैं कौन होता हूँ इनकार करने वाला, मगर ये बस समझौता होगा। मैं इसकी खुशियों की गारंटी नहीं दे सकता और ना ही इसकी हिफाजत। ये निकाह की दी हुई जबान का पास रखने के अलावा मेरे नजदीक कुछ नहीं। जब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, इसने बेतासुर लहजे में कहा था और वहां से उठकर चला गया था। महबूब बिछड़ जाते हैं, वफाओं को जवाल नहीं आते। महबूब बिछड़ जाते हैं, वफाओं को जवाल नहीं आते। हम वो आशिक हैं जिन्हें गद्दारी के ख्याल नहीं आते। हम तो पलते हैं सिर्फ मोहब्बत के लाडों में जानम। हम तो पलते हैं सिर्फ मोहब्बत के लाडों में जानम। हम वो वारिस हैं जिनके हिस्सों में अमवाल नहीं आते। वो जानते थे कि वो इनका भरम रख रहा है, मगर वो नाराज हो गया इनसे, और इसकी नाराजगी से ज्यादा इनके लिए किसी की इज्जत और इसकी हिफाजत अहम थी। उन्होंने पास पड़ा मोबाइल उठाकर कॉल मिलाई और कुछ जरूरी हुक्म जारी करने के बाद वो अपनी अलमारी की तरफ बढ़े और इधर मौजूद एक लिफाफा निकाला था। मगर लड़की तैयार चाहिए इनको, अनटच पीस जो वो देख कर गए हैं यहाँ। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। असफन से कहना कि वो गुलशन बाई की बेटी है, मेरी बेटी। जब मैंने उन्हें आज तक मौका नहीं दिया शिकायत का, तो वो कैसे दे सकती है? वो बेफिक्र हो जाए, वो जरूर सिंगापुर जाएगी इनके साथ। गुलशन बाई ने मुकारी से कहा और फिर पासपोर्ट और टिकट्स देखी थी। सिंगापुर? इसको समझ नहीं आया था कि वो क्या सुन बैठी है। दरवाजे के अंदर आते आते इसके कदम वहीं रुके थे। वो माँ जिस पर इतना भरोसा था इसकी बहन को, वो माँ जिसकी खातिर इसकी बहन दुनिया से लड़ने को तैयार थी, जिसकी रहमदिली, शफकत और प्यार का अंधाधुंध इतबार का झूठा खोल बनाए बैठी थी, अपने इर्द गिर्द इस माँ ने इसे बेच डाला, सौदा कर डाला इसकी मोहब्बत का, इसके खलूस का, इसके अंधेधुंध इतबार का। कुछ रिश्तों के मामलों में हम बेख्तियार होते हैं। इनमें से एक रिश्ता माँ का भी है, जिस पर अपनी तमाम तर जमा पूंजी पल भर में लौटाने का दिल करता है, जिससे हम चाहकर भी नफरत नहीं कर सकते, जिस पर हम चाहकर भी शक नहीं कर सकते। इसके लिए जिसने अपनी कोख से जन्म दिया वो भला कैसे बुरा चाह सकती है? मगर गुलशन बाई इन माओं से थी जो भूख लगने पर अपने ही बच्चों को सालन निगल दे, जिसकी दौलत कि लालच ने इस कदर सफाकित भर दी थी कि इसके अंदर माँ और औलाद का रिश्ता ही खत्म हो गया था। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ गुलशन भाई थी, एक कोठा चलाने वाली भाई। अनंता ने नफरत से इसकी तरफ देखा था और आंखों से मोती बेतहाशा टूट कर गिरे थे। इसकी माँ सफाकियत की इंतहा पे थी और वो दर्द की इंतहा पे। तो तुमने हमारी बातें सुन ली? वो जाने के लिए मुड़ी थी जब गुलशन भाई ने इसके सामने आते हुए कहा था, मेरे रास्ते से हटे। इसने जब्त को छूते लहजे में कहा। जब ही गुलशन बाई ने इसकी कलाई को दबोचा और अपने कमरे में ले गई थी। झटके से इसकी बाजू छोड़ी, वो गिरते गिरते बची थी। आगे बढ़ के दरवाजे को लॉक किया। हाँ, तुम क्या रो रही हो? चंदा तुम्हें बेचने में अभी थोड़े दिन लगेंगे, तब तक तुम अपनी ब्यूटी इनहेंस करो। ये रो धोकर मेरे पॉलिश चमचमाते बिजनेस पर दाग मत लगाना कोई। गुलशन बाई ने हंसते हुए इसकी तोड़ी पकड़कर ऊपर करते हुए कहा था, तो आखिर आप खुलकर सामने आ ही गई। शर्म नहीं आती आपको अपनी बेटियों की इज्जत को गिरवी रखते हुए? अरे चिच,
मुझे भला क्यों शर्म आएगी, मैंने भी तो यही कुछ किया है सारी जिंदगी, तुम लोग भी यही करोगी, नसीब बदला थोड़ी जा सकता है। भाई तवाइफ की बेटी भी तो तवाइफ ही कहलाती है, तुमने सुना नहीं, जैसा देश वैसा भेष। गुलशन भाई ने एक अदा से इसकी गाल पर हाथ रखते हुए कहा था, तो दूर रहे मुझसे, मुझे घिन आती है आपसे, आपके लमस से। कैसी माँ है आप जिसकी अकोश की खुशबू और कोक की खुशबू से उसकी बेटी को कराहत होती हो। इसने 2 कदम पीछे लेते हुए अपनी गालों पर बहते आंसू साफ किए थे। नहीं अनंता बाई, अपनी माँ को ऐसे नहीं कहते, तुम भूल गई, माँ का दर्जा अपनी किताबों में नहीं पढ़ा क्या तुमने, माँ के पैरों तले जन्नत है। गुलशन भाई ने इसके 2 तरफ कदम बढ़ाए, इसके गुलाबी नाजुक रुई की तरह के नरम पाँव पर पाँव रखा था। माँ? कौन माँ? आप माँ? वो माँ जिसे अपनी बेटी को बाई कहा, अभी वो माँ जो इंसानियत के दर्जे से गिर गई, वो माँ जो सफाकियत की इंतहा पर है, लालच के गड्ढे में गिरदन तक डूबी हुई है, लालच और हिर्स जिसके गले का तूप बना हुआ है। हाँ, पढ़ा है मैंने किताबों में, माँ को देखने से हज का सवाब मिलता है, लेकिन गुलशन भाई आपको देखने से मुझे सिर्फ और सिर्फ कराहत महसूस होती है, शर्म महसूस होती है। इसने बहते आंसू से एक लफ्ज चबा कर अदा किए थे। वाह वाह, वही लब, वही लहजा, वही जारहाना अंदाज, वही गमो गुस्सा, वही जाहो जलाल। क्या असर है खून का, बिल्कुल इस तरह तुम्हारा बाप भी मेरे सामने खड़ा हुआ था, बिल्कुल इसी तरह इसने गुस्से की इंतहा को छूते हुए अपने लहजे कड़वे वार किए थे मुझ पर गुलशन बाई पर हाथ उठाया था, इसने ठोकरें मारी थी, मुझे घर से बाहर निकाला था, इसके लिए मैं इससे वफा नहीं कर सकी। मुझ जैसी तवाइफ से वफा की उम्मीद इसने लगाई भी क्यों, जिसका सब कुछ धन दौलत ये मर्तबा हो। गुलशन भाई ने दोनों हाथ खोलकर कमरे में इर्द गिर्द देखते हुए अपने मर्तबे को महसूस करते हुए कहा, फिर पता है क्या हुआ, वो मारा गया, जस्ट बेचारा जवानी में इस दुनिया से चला गया। बहुत दुख है मुझे इसके जाने का, मगर इसकी एक गलती से जान का अजाब बन गई। ऐसे ही बिल्कुल तुम्हारे दादी हैं, वो चाहते थे कि वो अपना खून बचा लेंगे, मगर ये तो इनको मालूम ही नहीं कि मुझसे कैसे अपना खून को बचाया जा सकता है। गुलशन भाई ने इसके कान से पास होकर आखिरी अल्फाज और गोशी में गए थे। वो डर के मारे पीछे हुई थी, वे यकीनी थी जो इसके सांसों को जकड़े हुई थी। कोई सुहागन कैसे अपने सुहाग की कातला हो सकती है। इसका दम घटने लगा था इस कमरे में, ऐसे लग रहा था कि हवा भी इसको कांटों की तरह छू रही है। इसने गुलशन भाई की तरफ देखे बगैर कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे। सुनो लड़की, अपनी दीदम को एक लफ्ज़ भी तुमने बताया तो तुम्हारी दीदम की लाश इस कोठे के चौराहे पर लटका दूंगी, और इस धमकी को धमकी मत समझना। गुलशन भाई अपने गोल की पक्की है, जो कहती है वो करती है। गुलशन भाई ने सामने पड़ी टेबल पर फूड बास्केट में पड़ी छुरी उठाकर इसकी छुरी की नोक इसकी शाहरुख से थोड़ी दूर करते हुए दबाव बढ़ाया था। जा सकती हो अब तो, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बहन को जरूर जिंदा रखना चाहोगी, इसने मुंह को चुकाते हुए कहा। इसकी गर्दन से छुरी हटाकर सीधा निशाना बास्केट में लगाया था और छुरी सेब पर ठक से सीधे फुट हुई थी। सेब का हाल देखकर वो बहती आंखों से फिर से कांपी थी। वो कमरे से बाहर निकल रही थी जब अनंता दौड़ती हुई इसके सीने के साथ लगी। वो आमते कामते वजूद को इसमें घुसाते हचकियों से रो रही थी। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? बताओ अनंता, मुझे खौफ आ रहा है तुम्हारी हालत देख के, इसने इसकी गर्दन से निकलते खून को साफ करते हुए कहा था। वो दिदम, वो गुलशन बाई, हाँ क्या हुआ, मामा को बोलो। वो इसकी बात काट कर बोली, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बहन को जिंदा देखना चाहोगी। बोलो अनंता, क्या हुआ, क्यों इतनी डरी हुई हो? कुछ नहीं, चोट लगी थी तो मुझे पेन हो रहा है, इसने खौफ से कांपते हुए कहा। कैसे लगी? इसने जख्म की नोयत को देखते हुए कहा। मैं गिर गई थी, पाँव स्लिप हुआ, दीदम और टेबल पर लगी कील की नोक लगी, इसने साफ झूठ बोला था। अच्छा वेट, मैं ऑइंटमेंट लगाती हूँ, मुझे ना कभी भी तुमसे बहुत खौफ आता है अनंता। बी ब्रेव यार, हालात का मुकाबला किया करो, बी ब्रेव। तुम ठीक हो? इसकी आंखों से बहते आंसू इसके खोएपन को देखते इसने जख्म पर ऑइंटमेंट लगाते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, हाँ सो जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। इसने फर्स्ट एड बॉक्स को वापस इसकी जगह पर रखा था। नहीं, मैं सोना नहीं चाहती, लाइट ऑफ कर दें। इसने लेटे ही अपने बाजू को अपने आंखों पर रखा था। ओके, रेस्ट करो, पेन ज्यादा ना हो तो बताना, मैं डॉक्टर के पास ले चलूंगी। मैं कैसे बताऊं आपको दीदम, ये पेन डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, ये पेन इस हस्ती की तरफ से मिला है जिसका मदावा दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकता। मेरे रब मेरे दीदम को बचा ले इसकी अपनी ही माँ की घटिया चालों से। वो मुंह पर हाथ रखे अपनी दबी सिसकियों को दबा रही थी। इसकी माँ का असल रूप इसके सामने आ गया था। बोलती तो इसकी दीदम की जान जाती, ना बोलती तो इसकी दीदम को जिल्लत की जिंदगी मिलती।
क्या करूं, कोई रास्ता भी तो नहीं। मुझे इसका पासपोर्ट और टिकट ही फाड़ देना चाहिए। मुझे इस पासपोर्ट और टिकट को गायब कर देना चाहिए। मगर गुलशन भाई के कमरे में कैसे जाऊंगी? वो जानती थी कि गुलशन भाई के कमरे में जाने की किसी को इजाजत नहीं, यहाँ तक कि इसके कमरे की सफाई भी इसकी मौजूदगी में की जाती थी। शेर की कछार में हाथ डालने के मुतरादिफ था, मगर इसे ये सब करना था हर हाल में। वो चलती हुई खिड़की के पास आ खड़ी हुई, फिर इसने एक लंबा सांस खींचा और ताज़ा हवा को अपनी सांसों में उतारा। आज एक बेटी को उसकी माँ से जीतना होगा, मगर गुलशन भाई अपने किए पर एक दिन अपने आप को खुद नदामत होगी इंशाल्लाह, इसने अज़म से कहा। उन्होंने अलमारी से खाली लिफाफे को निकालकर हाथ में पकड़ा था, फिर रिलैक्सिंग चेयर पर बैठे थे। वो पिछले चंद दिनों से कितनी बार इस लिफाफे में मौजूद कागज पर लिखी तहरीर को पढ़ रहे थे। इनकी आंखें नम थी। एक बार फिर वो कागज देखकर उन्होंने इस कागज को निकालकर इस दोस्त को तहरीर को फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्त, ये वसीयत मेरी तुम्हारे नाम है। मेरी दोनों पोतियां मेरे लिए बहुत अहम हैं। तुम जानते हो मेरी जिंदगी के पीछे लगे काले साए के मुतालिक मैं अपने बेटे को नहीं बचा सका तो खुद को भी नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि वो मुझसे 10 कदम आगे का सोचती है। मेरी बड़ी पोती को इसने बेबस कर लिया है और वो मुझसे बहुत बदगुमान है। मैं चाहकर भी इसकी बदगुमानियां दूर नहीं कर पा रहा। मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद वो तुम्हारे ज़ेरे साया रहे। वैसे तो ये बहुत मायूब लगता है, एक बेटी का बाप होकर मैं अपनी पोती के लिए खुद तुम्हारे जावियान का हाथ मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी जिंदगी महफूज रहे और इज्जत भी तुमसे दरख्वास्त है कि इसको अपने घर की जीनत बना लेना और छोटी का बहुत ख्याल रखना। वो ना समझ है मगर वो दिल की बहुत अच्छी है, बिल्कुल अपनी दादी जैसी है। ये समझ लो तुम्हारे मरते दोस्त की आखिरी उम्मीद तुम हो। मैंने जायदाद दोनों में आधी आधी बांट दी है, मगर ये जायदाद उन्हें इनकी शादी के बाद ही मिलेगी। इनको कैसे तुमने खुद तक लाना है वो तुम जानते हो, बस मेरी उम्मीद को जिंदा रखना। तुम्हारा दोस्त मलिक निसार। उन्होंने नम आंखों से इस बार में फिर तहरीर को पढ़ा था। जावियान मांग गया था, इसलिए भी यही बहुत था। बाकी कैसे इन दोनों को इस घर तक लाना था वो इसका बंदोबस्त भी कर चुके थे। अपने जिगरी यार की बात को फरामोश करना इनके बस में था ही नहीं, जब तो पोते की नाराजगी भी मोल दी थी। वो लॉन में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। अपनी जिंदगी में आने वाले इस तूफान पर इसका रोम रोम जल रहा था। एक एशताल था जो रगों में उतर रहा था। ये सोच इसे खुद से बदजन कर रही थी कि एक लड़की इसकी जिंदगी में आना इसे इतना बेबस कर गया कि और जब वो इसकी जिंदगी में आएगी तो वो कितना मजबूर हो जाएगा। वो खुलकर नहीं जी सकेगा, सांस नहीं ले सकेगा, अपनी मर्जी से अपने बेडरूम को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसे अपनी लाइफ शेयर करनी पड़ेगी, अपनी चीजें शेयर करनी पड़ेंगी, वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जिसे वो जानता नहीं, मोहब्बत नहीं करता। मुझे मजबूर करके तुम मेरी जिंदगी में शामिल तो हो जाओ, मगर मीर जाफियान अफंदी तुम्हें इस कदर मजबूर कर देगा कि तुम खुद इस रिश्ते को खत्म करने के लिए मेरे आगे गड़गड़ाओ की भीख मांगोगी। तुम्हें अभी की नजरों में इतना गिरा दूंगा कि उन्हें अफसोस होगा अपने फैसले पर जो उन्होंने मीर जावियान अफंदी के लिए किया। मैं अपनी जिंदगी में कितना मजबूर नहीं हुआ जितना आज तुम्हारी वजह से अब भी इनके सामने मजबूर हूँ। तुम देखना तुम्हारी सांसों को ही तुम्हारी बेबसी ना बना दिया तो मेरा नाम जावियान अफंदी नहीं। वेलकम टू द ऑपरेशन हेल डियर फ्यूचर वाइफ। इसने सिगरेट को पाँव के नीचे मसला था। तो अभी ने तुम्हें बता दिया, इसलिए यूं उदास बुलबुल बन के बैठे हो। आहान अफंदी ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो आपको भी पता था सब। तुम्हारे आने से पहले मैं बहुत समझा चुका हूँ अभी को, मगर वो अपने मरे हुए दोस्त की उम्मीद नहीं तोड़ सकते। तो फिर मैं ही क्यों, आप भी तो है ना, वो इस रिश्ते में आपको क्यों नहीं बांधते देते? यार खुदा का खौफ करो, वो लड़की तुमसे भी 2 साल छोटी है और मैं तो इसका बाप ही लगूंगा। वैसे भी ये रिश्ता इसके दादा ने क्लियर कट अल्फाज में तुम्हारे लिए मीर जावियान अफंदी के लिए कहा है। आहान ने उसे साफ लफ्जों में बताया था। रियली, मगर लगते तो आप मुझे हैं, जहाँ जाऊँ आपको लेकर सब यही कहते हैं ये तुम्हारा बड़ा भाई है। खैर बाप तो आप इसके किसी लिहाज से नहीं लगते। वो अलग बात है कि भली का बकरा बनाने के लिए आप दोनों को मीर जावियान अफंदी ही मिला था। मेरी रिस्पेक्ट का फायदा उठाकर आप दोनों ये जो बिन बादल की बरसात को मुझ पर बरसा रहे हैं, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसने नाराज लहजे में साफ लफ्जों में अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा था। मेरा क्या कसूर है यार, मुझसे क्यों नाराज हो? बिलीव मी, अभी को बहुत समझाया है मैंने, कहते हैं तो अब जाकर एक दफा फिर से बात करूं, कोई जरूरत नहीं, मैं इनको अपना फैसला सुना आया हूँ, जैसा चाहते हैं कर गुजरे। इसे आहान की बात काटते हुए थके लहजे में कहा था। मतलब तुमने हाँ कर दी? आहान ने हैरानगी से पूछा। वो जानता था कि वो ऐसा ही करेगा। वो अपने अभी के किए हर समझौते को अपनी झोली में समेटेगा और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था मेरे पास अभी ने। मुझे हाँ ही तो करना था हर हाल में। इस लड़की को इस घर लाने की जो चमक इनकी आंखों में थी उसको मीर जावियान अफंदी कैसे कम कर सकता
सकता था, इस युद्ध को कैसे पीछा सकता था। इसने लंबा लंबा सांस हवा के सुपुर्द करते हुए कहा था। एक बार फिर सोच लो जावियान, आहा ने इसको खोजते हुए कहा। नहीं बड़ी, अब सोचना क्या, सोचने के लिए बचा ही नहीं। जावियान, आज तुमने साबित कर दिया है कि अभी को इस दुनिया में तुमसे बढ़कर कोई नहीं चाह सकता। तुमने इनके परसों की रियासत की ताज़ा फूल इनका फैसला कबूल करके उन्हें सौंप दिए हैं, आहान अफंदी ने खुशकिन लहजे में कहा था। गुड नाइट बडी, आई नीड सम रेस्ट। कहते ही वो रुका नहीं था, नम आंखों से वहां से चला गया था। इस सवाल को दिल में लिए कि अगर आज इसका बाप जिंदा होता तो वो भी इसे यूं दाद देता कि इसकी कुर्बानी पर या फिर इसकी खुशियों के आगे अभी के आगे डट के खड़ा हो जाता। वो नफरतों के सवाल करके मोहब्बतों का जवाब मांगते हैं कि मेरे हिस्से में कांटे लिखकर मुझसे ताजे गुलाब मांगते हैं। ये चाहतों की कड़ी मुसाफत, चलते हैं तन्हा शकस्त खुर्दा। कोई तो मेरा भी दर्द जानिए, कोई तो इससे हिसाब मांगिए। मिस यू डैड एंड मॉम, इसने बेड पर लेटते पिलो को हक करते शिद्दत से कहा था। बरामदे में रक्स की महफिल सजी हुई थी। आज भी कोठा पूरी अपोताप के साथ जगमगा रहा था। घुंघरों की चंगार और तबले की थाप फजा में अजीब वो वहशत ज़दा शोर बर्पा कर रही थी। वही सिगरेट का धुआं, शीशे के धुएं के मरकोले इन साजों को साथ दम दौड़ रहे थे। शबाब और शराब दोनों की तजलील बड़े दिलजमी के साथ हो रही थी। वो चुपके से सारी सूरत हाल का जायजा ले रही थी। गुलशन बाई इस महफिल में बैठी नुमाइंदगी और दाद तहसीन की किताबें जोड़ रही थी, यानी अनमता के लिए मैदान साफ था। वो चुपके से दबे पांव की तरफ भारी दरवाजे पर पहुंच के लॉक पर हाथ रख के खोलने की कोशिश की तो दरवाजा लॉक था, यानी दरवाजा खोलना था इसे किसी भी तरह। कीज कहाँ से मिलेंगी? अपने लैपटॉप को ऑन करके इसने डोर अनलॉक करने की वीडियो सर्च की थी। एक दो वीडियोस देखकर ड्रामे से स्क्रू ड्राइवर लेकर वो भागती हुई गुलशन बाई के दरवाजे तक पहुंची और इसने ऐसा 6-7 मिनट के अंदर किया था। वो बड़ी राजदारी से इस काम को सर अंजाम दे रही थी कि किसी को मालूम भी ना हो। अरे अनमता बाई, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपनी अकल से आती आवाज पर एकदम वो चौंकी थी। स्क्रू ड्राइवर हाथ से गिरते गिरते बचा था। कांपते हाथों से इसने स्क्रू ड्राइवर को दुपट्टे के नीचे छुपाया था। कुछ नहीं, मैं मामा से मिलने आई थी, इसने कांपती टांगों से लटकाते अल्फाज में कहा। अच्छा, मगर गुलशन बाई तो महफिल में है, आप इनसे मिलने बाद में आ जाइएगा। मगर आप इतना काम क्यों नहीं है? इसने कहा। वो मेरी तबीयत नहीं ठीक तो मामा से मेडिसिन का कहने आई थी, मगर कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं बाद में कह दूंगी। इसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। ठीक है, आप कहें तो मैं आपको रूम में छोड़ आऊं, आए मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम जाओ, काम जो कर रही थी वो कर लो। तो वो चली गई। इसके चेहरे जाने के बाद वो यहाँ देखकर तसल्ली करके इसने दोबारा कांपते हाथों से स्क्रू ड्राइवर को लॉक में घुसाकर पुश किया दाएं से बाएं कि एक झटके में लॉक खुल गया था। वो कांपती टांगों से अंदर दाखिल हुई थी। कमरे में गहरा सुकून था। वो डिजिटल लॉक था जो पासवर्ड मांग रहा था। आगे बढ़कर इसने अलमारी खोली जहाँ पर पासपोर्ट पड़े हुए थे, मगर वो लॉक खुलने का नाम नहीं ले रहा था। कांपती उंगलियों लर्जिश थे और माथे पर चमकती पसीने। इसने एक बार फिर से कोशिश की। डर के मारे वो ज्यादा पासवर्ड भी नहीं डाल रही थी कि कहीं पासवर्ड एरर ना आ जाए। जो भी इसे करना था बहुत सोच समझ के करना था, मगर इस बार भी रॉन्ग पासवर्ड ही आया था। ABISH, आबिश। इसके बिल्कुल पीछे से आवाज गूंजी थी। इस आवाज को वो लाखों आवाजों में भी पहचान सकती थी। पीले पड़ते चेहरे के साथ इसने पीछे मुड़कर देखा और इसे लगा था कि इसके जिस्म का खून निचड़ गया हो और जिस्म बेजान हो गया हो। क्या हुआ? डर गई? खोलो ना। गुलशन बाई ने इसके बालों से पकड़कर झगड़ा था और उसकी गर्दन पर हाथ रखकर दोबारा बढ़ाया था। कहा था ना कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करना। गुलशन बाई ने इसकी गर्दन पर मजीद दबाव बढ़ाया था। नाजुक से जान नबूद पर आई थी, आंखों में नमी और जिस्म की रगों में चलते खून की रवानी। मामा, वो खटी आवाज में इतना ही बोल पाई थी। क्या कहा? मामा? मैं तो तुम दोनों बहनों की माँ। हा हा कहकर मारकर हंसी। जब ये उसका अगला पीला पर्दा रंग देखकर झटके से इसकी गर्दन छोड़ी थी। इसकी सजा तो बनती है अनमता बाई। तुम्हें क्या लगा था मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे कमरे में आकर मेरा ड्रॉ खोलोगी और मुझे इल्म नहीं होगा? इस कमरे के लॉक को कोई हाथ भी लगाता है तो मेरे हाथ पर बंदी घड़ी पर मुझे फौरन नोटिफिकेशन मिल जाता है। मैं वहाँ बैठी तुम्हारा मुजरा देख रही थी जो तुम इस कमरे के लॉक को तोड़ रही थी।
तुम्हें क्या लगा तुमने इतनी आसानी से मुझसे अपनी बहन को बचा लोगी? चच चच चच, बहुत मासूम हो तुम। गुलशन भाई ने इसके दोनों जबड़ों को हाथ में पकड़ के इन पर गिरफ्त सख्त की थी। कितनी बेरहम और सफाक हैं आप, माँ ऐसी नहीं होती। चटाख! गुलशन भाई ने अपनी पूरी ताकत के साथ इसके मुंह पर थप्पड़ मारा था, जैसे वो बर्दाश्त न कर सकी थी। इसको हरकत ना करता देखकर पाँव की ठोकर मार के इसे सीधा किया था इसे, मगर इसे फिर बेहोश देखकर इसने गुस्से से एक ठोकर और मारी थी। इसके पेट पर जूती के मोती इसके पेट पर कमीज से अटके थे और पेट से कमीज अच्छी खासी फटी थी। गुलशन भाई, सफी और नासिर शराब के नशे में धत पड़े फिर से लड़ पड़े हैं। सफी ने नासिर का सर फाड़ दिया है बोतल मारकर, एक लड़की ने आकर बताया। या खुदाया, एक मुसीबत खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है। आज इन दोनों की तो अच्छी खासी ठुकाई लगवा कर निकालती हूँ यहाँ से। इन दोनों को आने कौन देता है? तुम जाओ, आती हो, गुलशन भाई ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें तो मैं आकर देखती हूँ। आज तुम्हारा इसी कोठे पर बंदोबस्त ना किया तो मेरा नाम भी गुलशन भाई नहीं। कहते वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी बाहर जाने के लिए। ये अनंता कहाँ है? कितनी बार इसे मना किया है कि शाम के बाद कमरे से बाहर ना निकला करे, मगर ये लड़की सुनती ही कब है। वो इसे ढूंढते हुए बाहर निकली थी। रितम, क्या हुआ बेटे, किसे ढूंढ रही हो? गुलशन भाई जो कमरे से बाहर निकले थी इसे यूं ढूंढते देखकर पल में ढटकी थी। डर के मारे से कहीं वहीं रोक लिया था कि कहीं वो अपनी बहन को इस हालत में ना देख ले। वो मामा, अनंता नजर नहीं आ रही, उसे ढूंढ रही हूँ। देखा आपने कहीं? हाँ, वो मेरे पास आई थी, कही थी कुछ बुक्स लेनी है और तबीयत ठीक नहीं थी तो मेडिसिन भी लेनी है। मैंने इसे ड्राइवर के साथ भिजवाया है, अपनी चीजें लेकर आ जाएगी। गुलशन भाई ने बड़ी सफाई से झूठ बोला था। ओह, बट ऐसा कुछ इसने मुझे तो नहीं बताया। मुझे बता दे तो मैं भी साथ चलती इसके। चंदा, परेशान होने की कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, आ जाएगी। वो ड्राइवर साथ है ना? इसमें इसमें इतना कॉन्फिडेंट डेवलप होने दो। हर वक्त इसे अपने साथ रख के बांध दोगी तो वो कैसे तुम्हारे बगैर सर्वाइव कर सकेगी? इसे खुद से जीना सीखने दो। अब हर वक्त तुम इसके साथ बंधी नहीं रहोगी। गुलशन भाई ने इसके साथ चलते हुए बड़ी मुखारी से समझाया था। जी मामा, ठीक कह रही हैं आप। कल तुम लोगों की सिंगापुर की टिकट्स आ जाएंगी। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं चौधरी असन, वो भी जा रहे हैं। तुम दोनों वहाँ चली जाना। वहाँ की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में तुम दोनों का एडमिशन करवा दिया है। अपनी तो तालीम मुकम्मल करो, फिर तुम्हारी शादी का भी कुछ सोचती हूँ। वैसे भी ये जगह मेरी बेटियों के रहने के काबिल नहीं। गुलशन भाई ने बड़े प्यार से उसे पुचकारते हुए कहा। मगर मामा, हम दोनों के लिए कैसे आप भी छोड़ दें ये सब और हमारे साथ चलें। इसने गुलशन भाई की तरफ देखते हुए कहा। मैं यहाँ रहकर कमाकर तुम्हारे लिए भेजूंगी, तुम लोग वहाँ आसानी से रह सको। गुलशन भाई ने मुस्कुराकर कहा। आपको कमाने की क्या जरूरत है मामा? दादाजी करोड़ों की जायदाद हमारे लिए छोड़ गए हैं। आपको हमारे साथ चलना चाहिए। इतना पैसा बहुत है कि हम तीनों हमारी लाइफ स्टाइल के लिए। ऐसे कन्विंस करते हुए कहा। नहीं मेरी जान, वो पैसा तुम दोनों का है, तुम दोनों का हक है, और वो जायदाद तो तुम लोगों को तुम्हारी शादी के बाद ही मिलनी है। वैसे भी इतने लोगों का रोजगार छीनकर इस कोठे को ताला नहीं लगा सकती। सालों से इस चुपनज़दा माहौल में रहते रहते अब तो आदत हो गई है मुझे यहाँ की। खैर, ये बहुत पुरानी फांस है। तुम दोनों अपनी पैकिंग कर लो, कल रात की फ्लाइट है। एंड नो मोर आर्ग्यूज। गुलशन भाई ने इसकी गाल थपथपाते हुए कहा। मगर मामा, इसने बेबसी से कहा। नो मोर आर्ग्यू कहते ही गुलशन भाई वहां से आगे की तरफ चल पड़ी थी। ये हम किस जगह जा रहे हैं? ये तुम्हारी ट्रीट है, क्या बेहुदा ट्रीट है? अहान अफंदी ने गुस्से से जाकिर को देखते हुए कहा। हाय सदके जाऊं मैं तेरे जाकिर, क्या जगह डिसाइड की है? ट्रीट की चमकती जवानियां देखने को मिलेंगी आज तो। फराज ने ललचाते लहजे में कहा। बेशर्मो, बेगैर तो कोई हया नाम की चीज है यहाँ? नहीं है, बेगैरती की उतारो मुझे अभी। और इसी वक्त अहान ने गुस्से में उन्हें डांटते हुए कहा। क्या यार अहान, तूने कहा था कि तू कुछ नहीं बोलेगा, बस चुप करके हमारी खुशी में खुश हो जाएगा। कुछ देर एटलीस्ट प्लीज। जाकिर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। बड़ी वाहियात खुशी है तुम दोनों की, इसने दांत छुपाते हुए कहा। चल ना, तू भी देख ले, शायद तुझे भी वहाँ कोई ऐसी मिल जाए जो तेरे जख्म भरने में तेरे काम आ सके। फराज ने उसे आंख मारते हुए कहा। ऐसी कोई नहीं जो थी जो वो जा चुकी है, जो और कुछ जख्म भरने के लिए नहीं होते। आहा ने भरते हुए कहा था। मगर कुछ इंसिडेंट इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। मैं वहाँ 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, तुम लोग चाहे वहाँ महीना रुकना। आहा ने गुस्से से कहा था। हाउ बोरिंग मैन। दोनों आहान को छेड़ते हुए कहका लगाकर हंसे थे। तकरीबन चंद सेकंड के बाद इसकी आंख खुली थी। खुद को नीचे गिरा हुआ पाया था। दर्द की शिद्दत से सर पर हाथ रखकर उठी, मगर सर बुरी तरह चकरा रहा था। होंठ का फटा किनारा दर्द तो करते बालों जान बना हुआ था और टांगों में जान बिल्कुल नहीं थी। वो गुलशन भाई के कमरे में मौजूद थी। इसका दम घटने लगा था इस कमरे में जब ही बड़ी हिम्मत करके उठी थी और दरवाजे का लॉक घुमाकर तेजी से बाहर निकली थी। अपने कमरे में वो जा नहीं सकती थी। इस हालत में दीदम के हजारों सवाल क्यों, उनके जवाब को कैसे देती। उसे 100 बज सीढ़ियां चढ़ने लगी और छत के किसी कोने में बैठकर जी भर के रोने के लिए। वो जानती थी कि वो बहुत कमजोर है, वो किसी सूरत में मुकाबला नहीं कर सकती। गुलशन भाई का अगर वो इसका ये हाल कर सकती है तो वो किसी सूरत में
कदम को भी नहीं छोड़ेगी, सोचते ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। ये शहर का मशहूर तरीन कोठा था, गुलशन भाई का कोठा। हुस्न के मसालों से भरा पड़ा। वो इनके साथ वहां आ तो गया था, मगर इसका एक लम्हे भी दिल नहीं लग रहा था। घुंघरूओं की झंकार और शराब की बदबू इसके असाब में खचाव पैदा कर रहे थे, जबकि जाकिर और फराज इस कदर इस शख्स की महफिल में खोए हुए थे कि उन्हें खुद की भी होश नहीं थी, और वो 1 घंटे से पहले वहां से जा नहीं सकता था अपने वादे के मुताबिक। तभी इसका अचानक दिल घबराना शुरू हुआ। फराज को बाहर खुली हवा में सांस लेने का इशारा करके वहां से बाहर निकला था। अरे साहब, क्या चाहिए आपको? कोठे पर मौजूद मुलाजमा ने कहा। मैं कुछ देर खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ, कुछ घबराहट महसूस कर रहा हूँ। मुझे छत का रास्ता बता सकती हो? आहा ने मुलाजमा से कहा। दाएं जानिब है सीढ़ियां साहिब। मुलाजमा कहती आगे बढ़ गई और वो सीढ़ियां चढ़ता छत पर पहुंचा था। फिर जेब में से लाइटर और सिगरेट निकालकर सिगरेट दांतों तले दबाए थे। गहरा सांस लिए वो अपनी खोई जिंदगी को याद करने की कोशिश करने लगा। वो चाह के भी इसके जहन के पर्दों पर नहीं जगमगाई थी, और ऐसा आज इसके साथ पहली मरतबा हुआ था। बहुत याद करने के बावजूद भी इसकी यादों में इसका अक्स नहीं लहराया था। सिगरेट की खूंद अपने अंदर उतारने से तलखी से मुस्कुराया था। तो तुम अपनी यादों को भी मुझसे छीन लिया। पता है, इतने सालों में अब मुझे तुमसे बस नफरत हुई है। तुम्हारी बेवफाई का जख्म बहुत बड़ा गुनाह बन गया है मुझ पर। इसने बची हुई सिगरेट को अपने जूते के नीचे मसलते हुए गुस्से से कहा, और फिर तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अभी पहली सीढ़ी पर कदम रखा था कि किसी नाजुक वजूद के साथ बुरी तरह टकराया था, और वो जो सीढ़ियों पर चढ़ी थी सख्त फौलादी सीने के साथ दोबारा सर टकरा बैठी थी, वहीं से जहां मेज का कोना लगा था, और फिर से सर से खून बहने लगा था। वो दोनों गिरते गिरते बचे थे। आहान का हाथ इसको गिरने से बचाते बचाते इसकी कमर पे गया था, फिर सख्ती से इसने इसके पीठ और कमर को पकड़ के झटके से इसे पीछे करते सीढ़ियों पर गिरने से बचाया था। अनंता के पेट में ठीस उठी थी, इसके बावजूद इसके हाथ उसे बुरी तरह इसके कंधों पर रखे थे। दोनों हाथ इसके कंधों पर दबाव भरते अपनी दबी सिसकी को रोका था, जबकि दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करते इसकी आंखों से आंसू बहे थे। आर यू ऑल राइट? आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं और आपको लग गई। इसकी कमर से हाथ उठाते इसने कहा। वो फुदक कर 2 कदम से पीछे हुई थी। झुका सर उठाया तो उसका चेहरा देखते ही मिनटों में आहान की जानवर बन आई थी। चेहरे पर थप्पड़ का निशान सफेद रंगत पर बाजा छुपा था। खून की कोने से खून बह रहा था और माथे का खून बहता गर्दन तक पहुंच चुका था। बड़ी बड़ी आंसुओं की कटोरों से भरी हुई थी। नाक पर भी खरोच थी। चेहरा इतने जख्मों की ज्यादती के बावजूद भी दिल नशीन था। नाजुक कामता वजूद लजिस्ते होंठ इसके दर्द का मुंह बोलता सबूत है। आहान का दिल फिर पर भर में इसकी तकलीफ पर डूब उभरा था। तभी अपनी आदत के बरखिलाफ आगे बढ़ के इसके फटे हुए होंठ के कोने पर अंगूठा रखकर हल्का सा सहलाया था, और वो ऐसा क्यों करा था वो खुद भी नहीं जानता था। क्या हुआ आपको? ये कैसे हुआ? इसने हाथ पीछे करके हटाकर पूछा था। डू नॉट टच मी। तुम जो कोई भी हो, जाओ यहाँ से। वो दर्द बर्दाश्त करते थक रही थी, तभी चलाई और मुड़ी थी। नहीं जाऊंगा। बताओ किसने किया तुम्हारे साथ? इसने इसकी कलाई पकड़ कर उसे कहा। लीव मी। इससे पीछे होते इसने अपनी कलाई चढ़वाई थी। इस बार तेज हवा का झोंका चला था और इसके खुले बाल पीछे हुए थे और इसकी गर्दन वाजिया हुई थी। ओ माय गॉड, तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की है? इसकी गर्दन पर उंगलियों के सुर्ख निशान देखकर वो हैरत की गहराइयों में डूबा था। तुमसे मतलब जिस काम के लिए आए हो इस कोठे पर, वो करो और जाओ यहाँ से। तुम जैसे लुटेरे हमदर्दी की बातें करते अच्छे नहीं लगते। जाओ, दफा हो जाओ। इसने आंसू से भीगे चेहरे से कहा। हाउ डेयर यू कॉल मी लुटेरा? इस कोठे पर आने वाले सब इंसानों को तुम्हें एक जैसा क्यों कह रही हो? इसको इसकी बात सुनकर गुस्सा आया था, और अब मैं समझी तुम्हें मामा ने भेजा होगा मेरे पीछे मेरी इज्जत नोचने के लिए। वो यही तो चाहती है। इसने उखड़ते सांस के साथ जोरदार आवाज में चीखते हुए कहा। शट अप, बकवास मत करो अपनी। मैं किसी के कहने पर क्यों करूंगा? और ये सब कोश में तो क्या बोलती जा रही हो? तुम मुझे बगैर जाने मेरे करेक्टर पर उंगली उठा रही हो। क्यों अजियत दे रही हो खुद को? इसने इसकी कलाई पकड़कर इसकी पुष्ट को सीने से लगाया था और इसका हाथ हटाकर इसके पेट पर अपना हाथ रखा था, जहाँ से कमीज फट चुकी थी और हल्का हल्का खून। प्लीज छोड़ दो मुझे। अब इसने कामते वजूद के साथ बड़ी हिम्मत करके कहा था। तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये नहीं बताओगी कि ये सब किसने और क्यों किया। और अनंता की जान बनाई थी। इसकी सुलगती सांसों को बर्दाश्त करते जिस समय मस्जिद का पपाहट जारी हुई थी। कामना बंद करो। आहान ने लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाई। इसका दिल चाह रहा था कि इसके सारे दर्द सारे गम चुन ले। तभी बेख्तियार होकर इसके कंधे पर लब रखने लगे। अमनता ने पूरी जान से इसकी गिरफ्त से निकलने और इसको पीछे धक्का दिया था, और तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी और अपनी तकलीफ को बर्दाश्त करती सीढ़ियां उतरने लगी थी। कहाँ थी?
तू चल उधर, गुलशन बाई का हुक्म है तुझे तहखाने में बंद करने का। अभी वो दौड़ती अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी कि रशीद ने इसकी कलाई पकड़ के इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे दबोचा और दूसरे कमरे में ले जाकर पर्दे के पीछे का दरवाजा हटाकर सीढ़ियां उतरने लगा था। वो किसी पड़पड़ाती चिड़िया की तरह हाथ पांव फैला रही थी, खुद को छुड़वा रही थी और गूं करती कुछ कहना चाह रही थी, इसका हाथ हटाना चाहती थी अपने मुंह से, और वो नाजुक जान इस फौलादी सिफत ताकतवर जिनसे 100 गुना कमजोर थी। रशीद ने गरजते हुए कहा, आवाज आई या शोर किया तो तेरी बोटियां नोच लूंगा। प्लीज मुझे मेरी दीदम के पास छोड़ाओ। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे को गिरा था। रुको, नीचे मत जाओ, मेरी बात सुनो, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। आई विल हेल्प यू। वो इसके पीछे ही लपका था, इसके पीछे भागा था, मगर वो मिनटों में इसकी आंखों से ओझल हुई थी। वो पागलों की तरह से यहाँ वहां ढूंढने लगा था। एक अलाव सा इसके अंदर दहकने लगा था। इसके दूर जाने का एहसास अजीब सा लगा था। क्यों फिक्र कर रहा हूँ मैं इसकी, जब उसे अपनी ही परवाह नहीं। इसे गुस्से से सोचा और वहां से निकलता चला। क्यों आए हो अभी यहाँ? मैंने मना किया था तुम्हें, फिर क्यों आए हो? कॉल कर देते मुझे, मैं खुद आ जाती तुमसे मिलने। गुलशन बाई ने इसे गुस्से से देखते चलाते हुए कहा था। आप आ जाती, पता भी है मॉम कितने दिनों से टरखा रही हैं आप मुझे, हर बार मुझे तसल्ली देकर चुप करवा देती हैं, मगर आज नहीं, आज मैं यहाँ से उसे देखे बगैर नहीं जाऊंगा। इसने जिद्दी लहजे में कहा। मैंने तुम्हें इसकी तस्वीर भेजी तो थी, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? क्या मेरी मुश्किलात बढ़ा रहे हो? देखो बेटा, किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मेरी बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। फॉर गॉड सेक आप भी जाओ यहाँ से। गुलशन बाई ने मिन्नत वाले लहजे में कहा। नो मॉम, तस्वीर से वो वाली फीलिंग्स थोड़ी आती हैं, मैं इसे देखकर छूकर महसूस करना चाहता हूँ। इसने ठंडी आह भरते हुए कहा। आप भी क्यों फजूल और बेहुदा बकवास कर रहे हो? गुलशन बाई ने इसे गुस्से से कहा। तुम ऐसे नहीं जाओगे? गुलशन बाई ने हिम्मत हारते पूछा था। नहीं, इसे किस किए बगैर तो बिल्कुल नहीं। इसे मगरू हंसते हुए कहा। अभी चले जाओ, अभी कुछ दिनों तक मैं इसे तुम्हारा निकाह करवा दूंगी। गुलशन भाई ने फिर से मिन्नत वाले लहजे में कहा। नो मामा, मैंने आज चलने वाला नहीं है, जस्ट 1 किस, और वैसे भी वो मेरी ही तो है, और क्या है ना निकाह आपने तो मेरा लाजमी करवाना है इसके साथ, क्योंकि मेरी प्यारी मामा को इसकी प्रॉपर्टी तब तक नहीं मिल सकती जब तक इसका निकाह नहीं होगा। इसने आंख मारते खसरत से कहा। वो जानती थी कि वो नहीं टलेगा, इसका ही तो खून था, तभी खबासत और मुखारी में इसे 4 हाथ आगे था। ओके ठीक है, मगर यहाँ तुम किसी के सामने मुझे मॉम नहीं कहोगे, क्लियर? इसने साफ लफ्जों में कहा। कोशिश करूंगा मॉम, इसने सर खुजाते हुए शरारती लहजे में कहा था। चलो अब मेरे साथ। वो इसे अपने साथ लिए आगे बढ़ी थी और तहखाने के दरवाजे पर लाकर उसे छोड़ दिया था और इसे अंदर जाने का इशारा किया। काम हो जाए तो मुझसे मिले बगैर चले जाना। इसने पहले सीढ़ी पर कदम रखा जब वो इसके कानों में गुलशन बाई की आवाज गूंजी थी। वो वहां से निकल आया, मगर इसका रवाज चल रहा था। इसका लम्बस इसे अपने इर्द गिर्द महसूस हो रहा था। इसकी खुशबू इसके आसपास मचल रही थी और उसकी धड़कनें बेताब हो रही थी। और ये जिंदगी में पहली बार था जब वो अपने जख्म भुलाए इसके जख्मों पर तड़प रहा था। जिंदगी में पहली बार जब वो किसी के आंसू पर इतनी बुरी तरह मचला था। मैं क्यों इसके बारे में यूं सोच रहा हूँ? क्यों इसके लम्स की मुझसे शिद्दत से ख्वाहिश हो रही है? वो मुझसे छोटी है और बहुत छोटी। मैं क्यों बहक रहा हूँ? अपने टेरेस की बालकोनी पर खड़े इसने सिगरेट के धुएं को उड़ाते खुद गुलामी की थी। वो जितना इसके एहसास को झुठला रहा था, उसका वजूद, उसका लम्स उसको उतना ही अपने करीब कर रहा था। मैं उसे वहां क्यों छोड़ाया? मुझे ढूंढना चाहिए था। अगर इसके साथ कुछ बुरा हो गया तो? नहीं, वो मर जाएगी। इसका नाजुक वजूद ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। आहान अफंदी, इसने अपने बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ते हुए कहा था। तुम्हारा ऐसा हाल करने वाले में किसी की सूरत नहीं बख्शूंगा। आई प्रॉमिस टू यू, पिंक रोज। इसने अपने इश्ताल पर काबू पाते कहा और गाड़ी की चाबी उठाते बाहर की तरफ बढ़ा था। क्या हुआ है बेटा, क्यों रो रही हो? वो जो तय खाने में मौजूद कब से आंसू बहा रही थी, एक रहमदिल शफीक हाथ सर पे रखे एक बूढ़ी खातून ने इसकी तरफ देख के पूछा था। आप कौन है? डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं खुद पिछले 18 साल से इस कैद में बंद ये हूँ, सकीना बाई ने कहा। आप यहाँ क्यों बंद हैं? अनंता ने इनके नौरानी चेहरे की तरफ देखा। बस अपनों की गद्दारी की वजह से। जब खून सफेद हो जाए तो गिला खुद की जात से ही बन जाता है, सकीना बाई ने थके लहजे में कहा। तुम्हें किस बात की सजा दी जा रही है? जरूर तुमने गुलशन बाई के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी की होगी। अम्मा, क्या कोई माँ इतना गिर सकती है कि वो खुद अपनी बेटियों को भेड़ियों के आगे पेश कर दे? क्या मतलब बेटा? सकीना बाई ने इसके आंसू साफ करते हुए पूछा। गुलशन बाई मेरी मामा है और वो चाहती है कि दीदम इनका काम आगे चलाए, और उन्होंने इसे बेच दिया है 10 करोड़ पे। वो अपनी बेटी का सौदा कर बैठी हैं। क्या कहा तुमने? क्या तुम दीदम हो? बूढ़ी खातून ने हैरानगी से पूछा। नहीं, मैं अनंता हूँ। अनंता मेरी बच्ची,
मैं तुम्हारी नानी हूँ। उन्होंने इसे सीने से खींचा था। क्या आपके साथ भी मामा ने इतना गंदा सलूक किया है? आपको यहाँ कैद कर रखा है? नहीं मेरी जान, जिसे तुम अपनी माँ समझी हो वो तुम्हारी माँ नहीं है। वो तो तुम्हारी, अभी इनके मुंह से अल्फाज ही थे कि जब कोई तेजी से सीढ़ियां उतरता नीचे आया था। हेलो नानी, आबिश ने आते ही मुस्कुराते हुए कहा था। हेलो वाइफ, इसने अनंता का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे उठाया था। वो तो सकीना बाई के लफ्जों पर ही उन्हें हैरान होते देख रही थी जब इसके पकड़ने पर इसके साथ ही उठती गई। छोड़ दो आबिश इसे, सकीना बाई ने इसका हाथ छुड़वाते हुए कहा। छोड़ दो मुझे। अनंता ने पूरी जान से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। वो लम्हे में होश में आई थी। नानो, मैं अपने होने वाली बीवी से मिलने आया हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब, कहते ही वो इसका हाथ थामते तहखाने में बने हुए एक कमरे के अंदर चला गया था। छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? लीव मी। अनंता ने चीखते हुए इसको पीछे धकेला था। आवाज नीचे। ज्यादा ऊंची आवाज सुनने का मैं कायल नहीं। एक बार बात साफ लफ्जों में समझा रहा हूँ। इसके बाद मुझसे दूर होने की कोशिश की तो मॉम से ज्यादा बुरा हशर करूंगा तुम्हारे साथ, समझी तुम? आबिश ने गुस्से से चंगाड़ते हुए कहा। कुछ दिनों में तुम मेरी बीवी बनने वाली हो। निकाह होने वाला है हमारा, और अभी मैं अपनी बीवी को महसूस करने और इसे किस करने आया हूँ। सो अब एक लफ्ज नहीं। कड़े तेवरों से कहते हुए वो इस नाजुक जान की कमर में हाथ डाले इसके खुद को करीब करते इसके लम्हों पर झुका था कि जब एक झटके से दरवाजा खुला था। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आई, अनंता ने अपने तेज नाखूनों के दवार से किसी खूंखार बिल्ली की तरह इसके चेहरे से का हुलिया बिगाड़ दिया था। आउच, यू बास्टर्ड, हाथ का पंच बनाया था। अभी निकलो यहाँ से, पुलिस की रेड पड़ गई है नासर और सफी की वजह से। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। निकलो अभी के अभी। फौरन गुलशन भाई ने इसको बाजू से पकड़ते अपनी तरफ खींचते बाहर ले जाते कहा था। आपने देखा नहीं मामा इसने कैसे मेरे चेहरे पर। बाद में बेटा सारे हिसाब बराबर करना, मगर अभी नहीं, बाद में। प्लीज जाओ, पुलिस आ गई है, तुम किसी भी मुसीबत में पड़ जाओगे। गुलशन भाई ने मिन्नत समझानत करके कहा। ओके फाइन, अभी तो जा रहा हूँ, मगर कल निकाह ख्वाह का बंदोबस्त करके रखिएगा। इसने गुस्से से चिंगारते हुए धमकी दी और फिर वहां से चला गया। तुम इधर इसी कमरे में बंद रहोगी तो मैं आकर देखती हूँ। मेरे बेटे के मुंह पर वार किया तूने। रशीद ताला डाल दे इस मुंह के कमरे के दरवाजे पर। गुलशन भाई ने रशीद को हुक्म दिया था। वो गाड़ी लेकर सीधा गुलशन भाई के कोठे पे गया, मगर वहां पुलिस मोबाइल देखकर कुछ देर के लिए ठटका। फिर वहीं खड़े इसने जेब से मोबाइल निकालकर फिराज को कॉल की थी। कहाँ हो तुम दोनों? यार हम इधर ही कोठे पर, फिराज ने बताया। मगर वहां तो पुलिस की रेड पड़ी है, हाँ ने पूछा। हाँ बस वो सरसरी सी कुछ लड़ाई हुई थी, यहाँ तो इसका सरसरी सा जायजा लेने आई थी, बस अब जा चुकी है, फिराज ने मसरूफ अंदाज में बताया। बाहर आ दो दोनों, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ऐसे हुक्म दिया। आहान कल, अभी नहीं प्लीज। और वो दोनों अगले 5 मिनट तक तुम दोनों मुझे बाहर चाहोगी। और वो दोनों अगले 5 मिनट तक वाकई बाहर थे। इसके पास कौन सी मुसीबत पड़ गई थी जो इस तरह बुलाया है? शट अप, अंदर एक लड़की है और वो मुझे चाहिए, आहान ने साफ लफ्जों में कहा था। आहान तूने ड्रिंक ली है? जाकिर ने गहरी लफ्जों से पूछते हुए कहा। नहीं। आहान ने नफी में सह हिलाया। फिर तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं मेरी तबीयत ठीक है, कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने पी रखी है। बगैर किसी नशे के तुम किसी लड़की के लिए कैसे बात कर सकते हो? यही तो मसला है, बिन पिए चढ़ गई है वो, इसका नशा और दिमाग दिल पर सवार हो गया है। इसकी खुशबू अपने गिर्द महसूस हो रही है। राज इसका चेहरा और उसके चेहरे पर लिखी दर्द की तेरी इसकी मासूमियत, इसको किसी ने बेदर्दी से मारा था यार, और सिर्फ मारा ही नहीं, इसे जान से मारने की कोशिश की थी यार। मैं नहीं जानता वो यहाँ कैसे और क्यों आई है, बट मुझे इसे बचाना है हर हाल में। देख आहान, अगर तुझे वो एक रात के लिए चाहिए तो हम बात कर सकते हैं गुलशन भाई से। तेरा दिल बहल जाए हमारे लिए, इससे बेहतर क्या होगा? मगर तू सिर्फ हमदर्दी के नाते इसे यहाँ से निकलवाना चाहता है तो देख मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हम पराई लड़ाई में क्यों पड़े? और वैसे भी इस कोठे पर ऐसी हजारों दास्तानें रकम होंगी। जाकिर ने उसे तसल्ली से समझाते हुए कहा। शट अप जाकिर, तुमने नहीं, मैंने इसे देखा है, वो यहाँ की नहीं है। इसकी हालत से वो लग ही ना रहा था वो यहाँ की हो, इधर पली बड़ी हो, वो इस दुनिया की नहीं है। और दूसरी बात, वो दिल बहलाने के लिए नहीं, ना ही रातें गुजारने के लिए। उसकी मासूमियत को मैंने किसी दरिंदगी के हवाले नहीं कर सकता। आखिरी बात इसने गुस्से से जाकिर की तरफ देखते हुए कहा। ओके ठीक है, तो हमें इसे ये पूछना चाहिए कि वो इसे हमें हमें कितने में बेचेगा? मैं उसे खरीदने नहीं, आजाद करने आया हूँ। फराज की बेचने वाली बात पर उसे गुस्सा आया। हाँ तो एक ही बात है आहान, पर चीज की एक ही कीमत होती है। हम मानते हैं कि वो चीज नहीं है, जीती जागती इंसान है वो भी, मगर जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ सौदे होते हैं हुस्न के। जाकिर ने उसे समझाते हुए कहा। तो फिर ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। आहान अफंदी को वो हर कीमत पे चाहिए। इसने जेब में सिगरेट निकालकर उसे सुलगाते हुए कहा।
पूरी रात इनकी इंगारों पर लुटते गुजरी थी कि वो दोनों ना आए तो, अगर उन्होंने आने से मना कर दिया तो। पूरी रात एक एक मिनट के लिए वो भी नहीं सोए थे। ये रात 2 बजे का वक्त था जब उन्होंने अनवर को कॉल की थी। सब रेडी है ना? अनवर की कॉल रिसीव करते उन्होंने पूछा। जी अफंदी साहब, सब रेडी है। अनवर ने तस्दीक की थी। देखो अनवर, किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, जैसा समझाया वैसी हो। वकील को कॉल कर दी थी ना तुमने? जी अफंदी साहब, कर दी थी कॉल। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो दोनों खैरियत से पहुंच जाएंगे, आप बस फिक्र मत करें। बस यार, दिल को धड़कन सी लगी हुई है, न जाने बच्चियां इस वैसे माहौल में कैसे दिन गुजार रही हैं। अच्छा तुम ये बताओ कि कब तक निकलोगे तुम वहां से? उन्हें सद आप भरते हुए पूछा। बस 2:30 बजे निकलेंगे और इंशाल्लाह आधे घंटे तक लेकर पहुंच जाएंगे आपके पास। अनवर ने तसल्ली बख्श जवाब देते हुए कहा। बहुत खूब, अल्लाह मदद करे तुम्हारी। मैं चाहता हूँ कि दिन की रोशनी में इन दोनों को कोई भी इस बदनाम जगह में निकलते ना देखे। जैसे ही उन्होंने लेकर पहुंचो मुझे कॉल कर लेना, मैं जाग रहा हूँ। उन्होंने अगला हुक्म जारी किया था। बहुत बेहतर अफंदी साहब। यारा मेरी बच्चियों को अपने ईमान में रखना। उन्होंने शिद्दत से सच्चे दिल से इनके लिए हिफाजत की दुआ की थी। नींद में उसे घबराहट सी होने लगी थी। ऐसे लगता था जैसे उसे अनमता ने पुकारा हो और वो एकदम नींद से जागी थी। अपने साथ वाले बिस्तर पर हाथ मारा। अनमता को ना पाकर उठ बैठी। अनमता कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? इसने दिल पर हाथ रखकर पेशानी से कहा। दीदम बाई आ रही हैं। गुलशन बाई। गफूरा ने उसे दीदम के आने का इशारा किया। क्या कह रहे हो? तुम होश में हो तो ऐसे कैसे? वो नहीं मिली तुम्हें? तुमने अच्छी तरह नहीं ढूंढा क्या? वो दीदम के कमरे में आते ही अपनी एक्टिंग जारी रखे ड्राइवर पर पर्स पड़ी थी। मामा वो अनमता? इसने गुलशन बाई के पास पहुंचते ही पूछा था। मिल जाएगी दीदम, मैं अभी पुलिस में रिपोर्ट करवा कर आई हूँ। इसने दीदम को तसल्ली देते हुए कहा। क्या मतलब मिल जाएगी? क्या हुआ है? वो तो बुक्स और मेडिसिन लेने गई थी। इसने परेशानी से कहा। वो जी हाँ, मेडिसिन लेकर बुक शॉप के बुक्स लेने, फिर बीबी जी माल में गई और वापस ही नहीं आई। मैंने पूरा माल छान मारा है। मेरी जान, मेरा बच्चा, रो मत, इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। मेरी तो खुद सांसें अटकी हुई हैं। तुम परेशान ना हो, मैं दूसरे ड्राइवर को तुम्हारे दादी को हवेली भेजा है, हो सकता है वो वहाँ गई हो। तुम फिक्र मत करो, अनमता मिल जाएगी। तुम कमरे में जाओ। गुलशन बाई ने फिर उसे तसल्ली देते हुए कहा। माँ, मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। वो हिचके उसे रोती हुई अल्तजा कर रही थी। माँ है ना तो तुम्हारी, अगर तो ये किसी ने जानबूझकर किया है तो अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाली कि मैं नस्लें बर्बाद कर दूंगी। तुम देखना, पताल में भी उसे ढूंढ निकालूंगी। तुम्हारी माँ, अपनी बेटी को मैंने एसएचओ को कॉल करनी है और ये महफिल का बखेरा भी समेटना है। तुम जाओ अपने रूम में। गफूरा दी तुमको इसके कमरे में ले जाओ और कमरा लॉक कर लेना अंदर से। मैं नहीं चाहती कि अगर एसएचओ तफ्तीश करने आए तो मेरी बेटी को कोई भी किसी गंदी नजर से देखे। कहते ही गुलशन बाई ने गफूरा को सिचुएशन अंडर कंट्रोल रखने का इशारा किया और दीदम मुर्दा कदम उठाते इसके हमरा चल दी थी। ना जाने क्यों पर इसका दिल शिद्दत से गवाही दे रहा था कि इसकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है। जी फरमाइए। गुलशन बाई ने इन तीनों के सामने एक अदा से बैठी हुई थी। असल में हमें एक सौदा करना है। फराज ने बात शुरू की। ओ अच्छा, तो किस हीरे की परख है? आप जोहरियों ने फिर से शान बेनियाजी से पूछा गया था। असल में बात यह है कि हमारे दोस्त ने आपके कोठे पर एक लड़की को देखा। इस पर असल में तशद्दुद किया गया था। जाकिर ने हचकिचाते बात की। हाँ, तो इस में नया क्या है? जब की सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये हमारे काम का हिस्सा है। गुलशन बाई ने मुकारी से हंसते हुए कहा और आहान अफंदी का दिल किया कि इसकी गर्दन मरोड़ दे। मैं मिलना चाहता हूँ उस लड़की से। आहान ने इसकी बात इग्नोर करते हुए कहा। सिर्फ मिलना या फिर खरीदना चाहता हूँ? वो इसकी बात काट कर बोला था। बहुत खूब, तो बताओ कौन थी वो इनमें से? गुलशन बाई ने ताली बजाई और वहां मौजूद सब लड़कियां एकदम से इन तीनों में आ गई। इनमें से कोई भी नहीं है। वो इसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान था। इसकी गर्दन पर वाज़िह किसी उंगलियों के निशान थे, गला दबाने के। इसका सर फटा हुआ था और खून का कोना भी। आहान ने एक एक लफ्ज दबाकर कहा। अनमता। गुलशन बाई जेर लफ्ज सरगोशी की थी। इसकी आंखों के सामने अनमता पर तशद्दुद के सारे मंजर लहराए थे। तुम कहाँ मिले इसे? गुलशन भाई घबराहट के मारे पूछा। छत पे। वो रोती वहां आई थी। आहा ने वाज़िह अल्फाज में सच बताया। इसके अलावा देखो, किसी को इसका सौदा नहीं कर सकती मैं। इसने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया। इसलिए कि वो तुम्हारी बेटी है? आहा ने चुपता हुआ वार किया था। मेरी बेटी नहीं है वो, समझे तुम। अब जाओ यहाँ से, इसका सौदा नहीं कर सकती मैं। गुलशन भाई ने मना करते हुए उठते हुए कहा। क्या आप इसे बेचना नहीं चाहती? फराज बोला था। अब की बार ऐसा ही समझ लो, मैं इसका सौदा कर चुकी हूँ। इसने गोया आहान के सर पर बम फोड़ा था। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। गुलशन भाई, जितने में इसका सौदा हुआ है मैं इसे डबल देने को तैयार हूँ। आहा ने दो टोक लहजे में कहा। मैं फिर भी इसका सौदा नहीं कर सकती। इसने फिर से इनकार किया। कोई रास्ता होगा, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। आप जानती हैं कि मैं पुराना ग्राहक हूँ आपका और कभी आपको नाउम्मीद नहीं किया। अब आपको हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। जाकिर ने आहान के इशारे को से चुप रहने का कहा और गुलशन से इल्तिजा की। रास्ता? हाँ, एक काम हो सकता है।
ذاکر تمہارے لیے 10 دن کے لیے تمہارا دوست اسے لے جا سکتا ہے، مگر 11ویں دن وہ یہاں ہونی چاہیے میرے پاس، مگر میں ہر دن کا 1 کروڑ لوں گی کیونکہ وہ ان ٹچ پیس ہے، معصوم کلی۔ گلشن بھائی نے تنفر سے ہنستے ہوئے کہا، میں 11 کروڑ دوں گا، بلاؤ اسے۔ آہا نے اس کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، 11 کروڑ، واہ! چھوٹی والی تو بڑی والی سے بھی زیادہ سونے کی مرغی نکلی۔ گلشن بھائی نے لالچ سے مسکراتے ہوئے کہا، پھر پاس کھڑے رشید کو اشارہ کیا، چھوڑو مجھے، لیو می۔ رشید نے اسے دونوں بازو گھسیٹتے ہوئے لے کر آیا تھا، ایک ہاتھ اس کی پیٹھ اور کمر پر تھا اور دوسرا اس کے بازو پہ۔ آہا نے اسے دیکھتا ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کی حالت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاں، آنکھیں پہلے سے زیادہ سوج گئی تھی، اسے شدید دکھ ہوا تھا۔ ڈو ناٹ ٹچ ہر، چھوڑ دو اسے۔ اس کے ننگے پیٹ پر رشید کا ہاتھ دیکھ کر آہان نے چلاتے ہوئے کہا تھا، ایزی آہان۔ فراز نے آہان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ابھی بابو تم اس پر ملکیت نہیں جاڑ سکتے، پہلے پیسہ پھر ٹشن دکھانا اپنا۔ چچ بیچاری انمتا بائی، میری بچی۔ گلشن بائی نے پہلے آہان سے کہا اور پھر انمتا کی توڑی پکڑ کے اسے اونچا کرتی طنزیہ لہجے میں بولی، یہ 10 کروڑ کا چیک ہے، باقی کا 1 کروڑ جب اسے چھوڑنے آؤں گا تب دوں گا، اور ایک بات یاد رکھنا، ان 10 دنوں میں تم اسے نہیں جانتی اور یہ تمہیں نہیں آئی سمجھ۔ آہان نے انگلی اٹھاتے ہوئے وارننگ دیتے ہوئے کہا، میں اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ دیدم بچائیں مجھے، دیدم، ماما مت کریں ایسے، میں بیٹی ہوں آپ کی، چھوڑ دیں مجھے ماما۔ وہ روتی ہوئی التجائیں کر رہی تھی۔ اب تجھے 10 دن تک اسے خوش رکھنا ہے میری بچی، تیری رخصتی کا وقت آ گیا ہے، جا سدا کامیاب رہے میرے سونے کے انڈے دینے والی مرغی۔ گلشن بائی نے فلک شگاف کہکا لگاتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، تم سن رہے ہو، تم نہایت گھٹیا انسان ہو، بچاؤ کوئی مجھے۔ وہ ہاتھ پلاؤں چلاتے ہوئے مدد کی طلب کر رہی تھی، اسے میری گاڑی میں پہنچاؤ، کوئی چادر ڈلوا کر، اور ہاں کسی فیمیل کے ہاتھ بھجوانا۔ وہ فراز اور ذاکر کو باہر کا اشارہ کرتے گلشن بائی کو حکم دیتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، اس نے ضدی لہجے میں کہا، چپ چاپ چلی جاؤ اگر اپنی دیدم کی حفاظت چاہتی ہو، ورنہ کام تو میں اپنا نکلوا ہی لوں گی، اب یہ تجھ پر ہے۔ اس نے انمتا پیلے پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس جنگل سے نہیں نکل سکتی جس جنگل میں وہ پھنس چکی ہے، وہ چاہ کر بھی اب کس رحم دلی کی امید نہیں کر سکتی۔ اس کو شدت سے اپنے داجی یاد آئے تھے، خود کو حالات کے سپرد کرتی وہ پتھر بن چکی تھی۔ کبھی کبھی ہمیں خود کو حالات کے سپرد کرنا پڑتا ہے، اس دوران ہم پر مایوسی بری طرح طاری ہو جاتی ہے، یا پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دریا کے پار لگانے والی ذات کوئی کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں، جسے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ کیسے ہمیں اکیلی کسی میدان میں تڑپتا چھوڑ سکتا ہے۔ وہ جو مسب المسباب ہے، مشکل کشا ہے، وہ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اور پھر وہ پتھر بنی کسی چون چرا کے مردہ قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھی تھی، تبھی کسی نے اس کے اوپر چادر اڑی تھی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر وہ رک گئی کیونکہ آہان 10 قدم کے فاصلے پر کھڑا اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا۔ نہیں یار، ابھی اپنے فلیٹ پہ لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے کل ملتے ہیں۔ اس نے دوستوں کو خداحافظ کہا اور انمتا والی سائڈ آ کر دروازہ کھولا تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی جبکہ آنکھوں سے آنسو تھے۔ پھر آج شہر تمنا کی رہگزاروں سے۔ آہا نے گاڑی چلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، وہ پتھر بنی گاڑی کے شیشے کے اس پار دیکھ رہی تھی۔ وہ پاس تھی تو اس کو سکون تھا، نہ جانے کیسا سکون تھا جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ اس کے ایک ایک زخم کو اپنے لبوں سے چن لے، اس کو راحت اور آرام دے، مگر اس کا کیا تھا جو پتھر بنی بے باز آنسوں سے رو رہی تھی۔ کسی انسان کے لیے کتنی بڑی تذلیل ہوتی ہے نا کہ اس کو کسی چیز کی طرح بیچا جائے۔ وہ ماں کی ممتا کی ڈسی، بہن کی محبت میں لٹی اور اپنی تذلیل کی بٹی میں چھلکتی ہر سانس کے ساتھ خوار ہو رہی تھی۔ ہم گلشن بھائی سے ملنے آئے ہیں، ان کے سابقہ شوہر اور سسر کی وصیت کے مطابق۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا جب اس نے رشید سے کہا تھا، آدھی رات کون ملنے آتا ہے، اس طرح جو آپ کو بات کرنی ہے صبح آئیے گا۔ رشید نے دو ٹوک لہجے میں کہا، ویسے جہاں تک ہمارا خیال ہے آپ لوگوں کی صبح اسی ٹائم ہوتی ہے، اور رہی بات صبح کی، تو میں نہیں چاہتا کہ اس بات کو آس پاس کے سارے لوگ دیکھیں اور پھر صبح کی الگ ہو گلشن بھائی کی، کیونکہ صبح پھر اکیلا ایک وکیل کے ساتھ آنے سے تو رہا۔ جاؤ جا کر حکم دو گلشن بھائی کو کہ انور کمال آیا ہے، اور یہ بھی بتانا کہ اس کا وکیل بھی ساتھ آیا ہے، دونوں بچیوں کو ساتھ لے کر آئے، انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ رشید جانتا تھا کہ وہ ٹلنے والا نہیں ہے، اس لیے اسے آنکھیں دبا تھا وہاں سے گزر گیا۔ ہے کوئی بہت ہی منحوس رات، اس کی شوبہ تم نے آہ کے اور بڑھا دی ہے، ویسے آ کے تم پھر اب کون سا نیا منصوبہ لے کر آئے ہو؟ گلشن بھائی نے آتے ہی انور کی طرف گھورتے ہوئے کہا۔ منحوس ہو گلشن بھائی تو منحوس ہے، خبر ہی لے کر آؤں گا، یہ کچھ پیپرز ہیں، ان کو اچھی طرح پڑھ لو، باقی کی کاروائی تمہیں میرا وکیل سنا دے گا، انور کمال نے ایک ادا سے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا۔ گلشن بھائی، ملک نثار نے اپنی ساری دولت
حشمت اللہ افندی کے نام کر دی ہے، اور یہ دولت ان کی وصیت کے مطابق تبھی ان کی پوتیوں کو ملے گی جب ان کی شادیاں ہو جائیں گی۔ وکیل نے بولتے رک کر گلشن بائی کی طرف دیکھا تھا۔ کیا وکیل، کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ یہ ساری بکواس مجھے پہلے سے معلوم ہے، اس نے بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ جب ہی انور اور وکیل دونوں فلک شگاف کہکا لگاتے ہنسے تھے۔ آگے تو سن گلشن بائی، وکیل نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ ملک نثار کی وصیت کے مطابق ان کی بڑی پوتی کی شادی میر زاویان افندی یعنی حشمت اللہ افندی کے پوتے سے ہوگی، اور یہ فیصلہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے لیا ہے، جبکہ دوسری بیٹی تب تک ان کے گھر میں رہے گی جب تک حشمت اللہ افندی اس کی شادی کا کوئی بہتر فیصلہ نہیں کر لیتے۔ ان کی وصیت میں یہ بھی شامل ہے کہ چونکہ ان کو اپنی دونوں پوتیوں کی جان کو اور عزت کو لے کر تم سے خطرہ ہے، تو اس کے لیے وہ اپنے جیتے جی کورٹ سے آرڈرز لے چکے ہیں۔ یہ سارے پیپرز ہیں، تم پڑھ لو۔ وکیل نے تمسخرانہ لہجے میں کہتے گلشن بائی پر باقاعدہ بم پھوڑا تھا، اور یہ سب ان کا دیکھ کر ان کا رنگ منٹوں میں بدلا تھا۔ یہ پیپرز جھوٹ ہیں، اس نے پیپرز بھڑکتے ہوئے کہا۔ دنیا کی کسی بھی عدالت میں لے جاؤ، تم ان پیپرز کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ انور کمال نے فاتحانہ مسکراہٹ سے سجایا تھا۔ وہ دونوں تمہارے ساتھ جانے کے لیے کبھی نہیں مانیں گی۔ گلشن نے آخری پتا پھینکا۔ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم زبردستی بھی لے جا سکتے ہیں، ہمارے پاس آرڈرز ہیں، وکیل نے چیلنجنگ انداز میں کہا تھا۔ بلاؤ اسے، گلشن بائی نے غصے سے رشید کو کہا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، جب سونے کی چڑیاں ہاتھوں سے نکل کر پھر کر اڑ جاتی ہیں، انور کمال نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، گلشن بائی ہے نام میرا، ایک دن سے زیادہ ان کو اس افندی کے گھر رہنے نہیں دوں گی۔ کیا ہوا ماما، کیا انمتا مل گئی؟ وہ دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ نہیں بیٹا، انمتا کا بھی پتہ چل جائے گا، فی الحال تم کو یہ لینے آئے ہیں۔ تمہارے داجی کی وصیت کے مطابق انہوں نے اپنے دوست کے پوتے کے ساتھ تمہارا رشتہ کر دیا ہے، اور تمہیں اور انمتا کو ان کی کسٹڈی میں جانا ہوگا، کیونکہ تمہارے داجی کو مرنے سے پہلے ایسا لگتا تھا کہ تم دونوں بہنوں کی جان کو مجھ سے خطرہ ہے، گلشن بھائی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ واٹ نان سینس، ہمیں ہماری ماں سے کیوں خطرہ ہوگا؟ مجھے تم لوگوں کے ساتھ کہیں نہیں جانا، دیدن نے ان کے سامنے آ کر چلا کر کہا تھا۔ بیٹا، ہمارے پاس کورٹ آرڈرز ہیں، انور کمال نے شفیق لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دیکھ لوں گی میں کورٹ کو، آپ بھی جا سکتے ہیں یہاں سے، میں خود جج کے سامنے جا کر کہوں گی کہ مجھے میری ماں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس نے ٹھوس لہجے میں ان لوگوں سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم زبردستی نہیں کریں گے، تم بات کر لو ان سے، انور کمال نے کہتے ہی موبائل نکال کر حشمت اللہ افندی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو انوار، کیا وہ مان گئی؟ انہوں نے بےتابی سے فون کیا۔ فندی صاحب آپ بات کریں، وہ نہیں مان رہی، انور کمال نے کہتے ہوئے موبائل دیدم کی طرف بڑھایا۔ بیٹا، میں جو کر رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، پلیز جیسا وہ کہہ رہی ہیں ویسا ہی کرو، یہ تمہارے داجی کی آخری خواہش۔ بھاڑ میں گئے داجی اور بھاڑ میں گئے آپ، ان کو مر کے بھی نہیں سکون ملا میری زندگی جہنم بنانے میں۔ لعنت بھیجتی ہوں ان کی دی گئی جائیداد پر اور ان کے دیے کے ہوئے رشتوں پر۔ اس وقت میں اپنی بہن کو لے کے بہت پریشان ہوں، وہ پچھلے 6 گھنٹے سے لاپتہ ہے، مجھے مزید پریشان مت کریں، اور ایک بات، آپ سے ملاقات اب کورٹ میں ہوگی۔ کہتے ہی اس نے فوراً انور کمال کی طرف بڑھا دیا اور روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ سر، کیا ہم زبردستی؟ نہیں انور، کوئی زبردستی نہیں اس مسئلے کا ہے، کوئی اور حل سوچنا ہوگا، اور انمتا کا پتہ کرو، اسے کس نے کڈنیپ کیا ہے، تم آ جاؤ واپس، انہوں نے اپنے آنسو پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ جی سر، انور نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ گلشن بھائی، ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دوں گا، اور اگر انمتا کی کڈنیپنگ میں تمہارا ہاتھ یا پھر تم نے اس کو کسی کے ہاتھوں بیچا ہے تو اپنی عبرتناک انجام کے لیے تیار رہنا۔ وہ کہتے رکے نہیں تھے، وکیل کو لے کر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ پیاس کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی تھی، اٹھ کر بیٹھا تھا، پھر پانی پینے کے لیے جگ دیکھا تو خالی تھا۔ خالی جگ پکڑے اپنے کمرے سے کچن کی طرف بڑھنے لگا کہ اپنے ابھی کے کمرے کے پاس سے گزرتے وہ یکدم رکا تھا۔ تم ٹھیک کہتے تھے نثار، وہ بہت نفرت کرتی ہے تم سے، اس کے لہجے میں آج سے بات کی تصدیق کر دی، اتنا زہر کھندا لہجہ تھا اس کا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے لیے، اس کے منہ سے وہ سب سن کر کاش وہ تمہاری پوتی نہ ہوتی، انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ کچھ نہیں زاویان، بس ویسے ہی۔ ابھی پلیز مجھے بتائیں کیا ہوا؟ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی زاویان، وہ میرے یار کے بارے میں اتنا غلط بھول رہی ہے، وہ یار جس نے ساری زندگی ان کی حفاظت کی، اسے اپنی ماں پر یقین ہے، وہ ماں جو ان کی عزت کے ساتھ ساتھ ان کی جان کی دشمن ہے۔ ابھی کیا بات ہے، پلیز مجھے کھل کر بتائیں زاویان۔ ملک نثار کو تم جانتے ہو، اس کے بیٹے نے ایک طوائف سے شادی کی تھی، اور پھر اس کی 2 بیٹیاں ہوئی، اور پھر ان کے درمیان جھگڑے ہوئے اور بات علیحدگی تک جا پہنچی۔ ان دونوں بچیوں کے باپ نے ان کی پرورش کی کسٹڈی کورٹ سے لی تھی، مگر اس نوٹس کے ملتے ہی تیسرے دن اس کو گولی لگی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ پولیس کے مطابق وہ خودکشی تھی، مگر نثار اور میں جانتے ہیں کہ وہ خودکشی نہیں، مرڈر تھا، پھر بھی ہم یہ ثابت نہیں کر سکے۔ نثار نے کیسے بھی ان دونوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ انہیں پالا اور بڑا کیا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، مگر پھر
15 दिन पहले ही निसार का कार एक्सीडेंट हुआ और वो जान से मारा गया। इसकी वसीयत बल्कि आखिरी ख्वाहिश थी कि इसकी बड़ी पोती की शादी तुमसे हो और वो इस कोठे पर कभी जाकर ना रहे। वो बदनाम जगह कभी भी इनके रहायश की नहीं है। मैं ही नहीं जानता कि गुलशन ने ही अपने शोहर और ससुर को मरवाया है, क्योंकि मैं बगैर किसी भी सबूत के इस पर इल्जाम नहीं लगा सकता। मगर वो अच्छी औरत नहीं है जावियान। इसकी छोटी पोती को वो किडनैप करवा चुकी है। मैं नहीं जानता कि उसने उसे बेच दिया या फिर क्या किया इसके साथ। जावियान चाहकर भी अपना यार का भरम नहीं रख सका। रोते हुए बेबसी से कहते, हाशमतुल्लाह अफंदी ने सारी बात बताई थी। अभी क्या आप चाहते हैं? प्लीज मत बेबस करें खुद को। आप चाहते हैं जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इसको अपने अभी की हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ था। जावियान, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे यार को जो मानता मुझ पर वो कभी ना टूटे। मैंने वकील हायर किया था, अनवर कमाल को भी भेजा, मगर इसने कहा कि वो लानत भेजती है अपने दादी की दौलत पर, उनके तय किए हुए रिश्ते पर। वो एक बार फिर बेबसी की तस्वीर बने बैठे उसे बहते आंसू से सब बता रहे थे। अभी जैसे आप और आपका दोस्त चाहते हैं वैसे ही होगा। आप सुबह निकाह की तैयारियां करवाएं, वो सुबह निकाह करेगी मुझसे, आप मुझ पर छोड़ दें। और अब रोना नहीं, इसने इनके आंसू साफ करते हुए कहा। जावियान, क्या तुमसे ले आओगे इन दोनों बहनों को? उन्होंने पुरउम्मीद लहजे में पूछा। जी अभी सुबह वो दोनों यहाँ होंगी आपके पास, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, सो जाएं। वो इनका हाथ थामते इनको प्यार से बेड पर पास लाया था और बेड पर लिटाया था। इन पर फटरे देते इसने लाइट ऑफ की थी और खुद गुस्से से बाहर की तरफ आया था। मेरा दिल कह रहा है मैं तुम्हें जान से मार दूं, तुम्हारी वजह से मेरी अभी की आंखों में इतने आंसू आए हैं। इसकी दिमाग की रगें तनी थी। आई प्रॉमिस यू अभी गुलशन भाई कि कोठे से इस लड़की को आधे घंटे के अंदर अंदर इसके छत के नीचे लाके खड़ा करूंगा, और जितने आंसू इसने आपको दिए हैं इससे ज्यादा इंसान आंसू इस लड़की के मुकद्दर में ना लिखे तो मेरा नाम भी मीर जाफियान अफंदी नहीं। कहते ही इसने अपने कमरे से गाड़ी की कीज उठाई थी और बाहर की तरफ आया था। क्या लगता है वो बस एक हमदर्दी के नाते पर इस 11 करोड़ पर लौटा गया, या फिर कोई नया जज्बा इसके अंदर पनप रहा है? साकिर ने गाड़ी चलाते हुए फराज की तरफ देखा। नहीं, ये हमदर्दी नहीं है, मुझे लगता है इसे मोहब्बत हो गई है, पहली नजर वाली मोहब्बत। मगर वो इस मोहब्बत को जान नहीं पा रहा। वो समझता है वो इन 10 दिन के अंदर उसे छुटकारा दिलवा लेगा, मगर हर अजियत से। मगर वो गलत समझ रहा है। वो शायद इसे छुटकारा दिलवा ही ले, मगर वो खुद को छुटकारा नहीं दिला पाएगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम इसकी हर तकलीफ से इसको आजाद दिलवाना होगा। जाकिर ने कहा, मेरा ये ख्याल है कि ये काफी मुश्किल काम है, हम बुरी तरह फंस सकते हैं। फराज ने इसकी तरफ देखते हुए इसे हकीकत देखने का कहा था। नहीं, अगर हम इसके साथ होंगे तो मुश्किल नहीं, और अगर वो इसकी बीवी बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे अलग नहीं कर सकती। जाकिर ने सजेशन देते हुए कहा, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि आहान इस सब के लिए मान जाएगा? तुम शायद वो नहीं देख रहे जो मैं देख रहा हूँ। इस लड़की में ऐसी वाइब्स हैं कि जो इसके दिल को पल में पिघला सकती हैं। मेरे ख्याल से इसके लिए इस लड़की से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। और फिर फराज, वो छोटी है, नाबालिग नहीं, और वो कहाँ से बड़ा लगता है? आज भी वो 24 साल का लड़का लगता है, 32 का होने के बावजूद। तो बस मैंने सोच लिया है कि तुम सुबह 12 बजे मौलवी को लेकर पहुंचोगे इसके फ्लैट पर, बाकी सब मैं कर लूंगा। जाकिर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था। आर यू श्योर? फराज ने तस्दीक चाहिए। यस, 100% श्योर, जाकिर ने पुख्ता लहजे में कहा था। वो जिस तेज रफ्तारी से चला रहा था, इससे गाड़ी सड़क के बजाय हवाओं में उड़ रही थी। वो जल्द अज जल्द गुलशन भाई के कोठे पे पहुंचना चाहता था, और रह के इसकी आंखों के आगे अपने रोते हुए अभी की तस्वीर आ रही थी। गाड़ी खड़ी की वो चौकीदार से किसी बात का जवाब दिए बगैर दंदनाता हुआ अंदर आया। गुलशन भाई, वो अपनी पूरी आवाज में चलाता हुआ पुकारा रहा था। वो जो भी अनवर कमाल और वकील को भुगता कर अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी थी, अपने नाम की आवाज पर माथे पर बल डालती पलटी थी। कौन हो तुम, और मेरी छत के नीचे खड़े क्यों चला रहे हो? मैं कौन हूँ, मैं ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। मेरे होने वाली बीवी कहाँ है? इसने सामने पड़े शीशे के टेबल पर पांव रखते नफरत से गुलशन भाई को देखते हुए कहा। कौन सी बीवी? क्या बकवास कर रहे हो? रशीद निकालो यहाँ से इस पागल को, इंसान को। कौन सी बीवी? मैं मलिक निसार की पोती की बात कर रहा हूँ, और चाहो तो मतलब की कोशिश कर सकती हो। जो कर लो, मैं यहाँ से निकालने के लिए आओ। रशीद, निकालो मुझे यहाँ से। जावियान ने हंसते हुए कहा, तो फिर सामने पड़ी फूड बास्केट में से सेब उठा के इसकी बाइट लेते बड़े हक से सोफे पर टांगे फैलाता बैठा था। क्या देख रहे हो? रशीद, उठाओ इसे और बाहर फेंको। गुलशन भाई ने फिर से रशीद की तरफ कराते हुए कहा। जावियान सामने लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए गुलशन भाई का आग भगोला होता हुआ चेहरा देख रहा था। तभी रशीद पूरी कुव्वत से आगे बढ़ा और
मुट्ठी का पंच बनाकर जावियान को मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि जावियान ने सेब खाते दूसरे हाथ से इसकी मुट्ठी को अपने हाथ में जकड़ा और सीधी टांग उठाकर इसके पेट पर शिद्दत से मारी थी कि वो उठता हुआ दीवार में जा लगा था। ऐसा जावियान ने सोफे पर बैठे बैठे बड़े आसानी और बड़ी तसल्ली से किया था। क्या हुआ रशीद, आप मुझे बाहर फेंकने के लिए आए थे? आह रशीद, तुम इतना भी नहीं कर सकते। तुम्हारी मालकिन क्या सोचेगी कि तुम इसकी हुक्मदुली कर रहे हो? रशीद हिम्मत करके एक बार फिर उठा था। तुम्हारे पास कोई और रशीद है या फिर इस ड्रामे की इधर ही ब्रेक लगाना होगी? इसने इधर खाए सेब को रशीद की तरफ फेंकते हुए अपने दोनों हाथों को झाड़ते हुए कहा, अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से ना गए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। गुलशन बाई ने उड़ी रंगत के साथ कहा, शौक से करो, उठाओ फोन में, तब तक अपनी वाइफ को ढूंढ लो। इसने कहका लगा कर कहा, मामा कौन आया है? क्या अनंता का पता चला? वो जो अनवर, कमाल और वकील को अच्छा खासा सुनाकर रोती हुई कमरे में गई थी, शोर की आवाज सुनकर वो कमरे से दौड़ी बाहर आई थी। खुले बाल, रुई आंखें, छोटी सी नाक, नाजुक से सरापा चांदी की तरह दमकती रंगत, बड़ी डार्क ब्राउन आंखें और थोड़ी के खम पर दमकता काला दिल। दुपट्टे से बेनियाज वो लाइट पिंक सादा सी सलवार कमीज पहने पहली नजर में इसको पलक झपकने पर मजबूर कर गई थी। एक ट्रांस की कैफियत में जावियान से अछूते हसन के मालिक को बगैर पलक झपके देखा था। ऐसा नहीं था कि इससे पहले कभी इतने खूबसूरत हुस्न को नहीं देखा था। कनाडा में रहते हुए वो हर हुस्न और खूबसूरत हुस्न के मालिक अस्बेराओं की देख चुका था, मगर जो सामने खड़ी थी वो उसकी कशिश ही अलग थी। तुम अंदर जाओ दीदम, गुलशन बाई ने गरजदार आवाज में कहा। अरे मेरी बेगम तो खुद चलकर मेरे पास आ गई है, मुझे ख्वार होने की जरूरत ही नहीं। दीदम जाओ यहाँ से। वो इसकी बात सुनकर फिर से दीदम चलाई थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो जावियान को नहीं रोक सकती, क्योंकि वो इसके एक पन से रशीद को ढेर करके देखता सहम गई थी। और दीदम जो जावियान की बात को समझने की कोशिश करी थी, अपनी माँ के चलाने पर एक दफा जगह पर खड़ी खड़ी कांपी थी कि इधर बेबी, तुम्हारा अभी तुम्हें लेने आया है, ऐसे कैसे तुम जा सकती हो? जाविया ने इसकी तरफ मुड़ते हुए इसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बुरी तरह उसकी बाहों में आकर गिरी थी। छोड़ो इसे, गुलशन भाई ने आगे बढ़ते हुए कहा था। छोड़ने के लिए इसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाए। जाविया ने इसके कमर में हाथ डालकर इसे खुद के करीब करके दांतों की नुमाइश की। छोड़ो मुझे। नहीं, और मैं तुम्हारी बीवी के हक से तुम मुझ पर हक जता रहे हो। दीदर ने इसकी पनाहों में मचलते हुए कहा, बेबी इधर हक इस्तेमाल करके दिखा दो तुम्हारी माँ के सामने, मुझे तो कोई एतराज नहीं, मगर तुम्हारी माँ हमारी प्राइवेसी में कबाब में हड्डी में फील होंगी। इसने इसके ऊपर झकझकते उसके निचले होंठों पर अंगूठा रगड़ते गंभीर लहजे में कहा था, तुम जो कोई भी हो, मैं दादी की लाइफ में ही इस रिश्ते से इनकार। पहली बात तो ये कि मैं जो कोई नहीं, मीर जावियान अफंदी हूँ, तुम्हारा होने वाला शोहर। दूसरी बात, तुम्हारे इनकार या इकरार का हक तुम्हें किसने दिया है? होती कौन हो तुम इनकार करने वाली? मीर जाफियार अफंदी को। इसने इसकी कमर पर अपनी उंगलियों को दबाव बढ़ाते हुए इसके कान के पास आंख रगड़ते एक एक लफ्ज को चबाकर कहा। जब कोई मर्द इसको इतने करीब से इसे बेबस किए अपनी पनाहों में लिए खड़ा था और वो खुद को छुड़वाने की एक बार फिर से वो हलकान हुई बैठी थी। कोई फायदा नहीं अपनी नन्ही सी जान को हलकान करने का। एकदम जावियान की आंखों में खून उतरा था। चलो चादर लेकर आओ, वो यार गेटिंग लेट। एक झटके से उसे छोड़ते जावियान ने अगले हुक्म जारी किया था, तुम शराफत से खुद ही चले जाओ, ना तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगी मैं, समझ? गुलशन भाई ने दीदम के हाथ पकड़ते हुए अपने करीब करते जावियान की उंगली उठाकर वार्न किया था, खबरदार, जो आज के बाद तुमने अपने इन गंदे और नापाक हाथों से मेरी बीवी को छूने की कोशिश की। इसने आगे बढ़ के इसे फिर से अपनी तरफ खींचा था और गुस्से से फिर भरी आंखों से गुलशन को देखने को कहा था, तुम मेरी माँ से शट अप, जस्ट शट अप। इसने दीदम की बात काटते इस पर गुस्से से बरसते उसकी कलाइयों पर अपनी उंगलियां धंसाते हुए कहा था और उसे लगा था इसकी कलाई की हड्डी चटक जाएगी। अब चलो। वो उसे कलाई से पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ा था और उसने मजबूती से अपने पाँव को जमीन पर मजबूत करते हिलने से इनकार किया था। ओके, नो प्रॉब्लम। इसी जगह से हिलता ना देखकर जाविया ने इसकी कमर पर हाथ डालकर नाजुक सी गुड़िया को कंधे पर उठाया था। मामा बचाए मुझे, मुझे नहीं जाना इसके साथ, प्लीज कॉल द पुलिस। मामा। वो पूरी तरह इसके कमर पर मुक्का बरसा रही थी। छोड़ो जाविया ने, से तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। गुलशन भाई को जब अपने हाथ से 10 करोड़ निकलता महसूस हुआ तो बिन मछली की तरह तड़पती इसके पीछे ही लपकी थी। वैसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर गिर रहा था, दरवाजा बंद करता बड़े तोहमत से गुलशन भाई की तरफ मुड़ा था। शौक से कहना, SHO, गवर्नर जनरल, मैनेजर इंटेलिजेंस, स्पेशल फोर्स, जिसको फोन करना है शौक से करना, मगर उन्हें ये जरूर बताना कि जावियान अफंदी आया था। जाविया ने अपनी उंगलियों के पूरों पर एक एक नाम को गिनते कहा था और एंड में कांधों से शर्ट पकड़कर पीछे को करते अपना नाम लेते फखर से कहा था,
اور ہاں ایک بات اور، آپ کی بیٹی سے میں ہمیشہ پیار کروں گا، بالکل ایسے اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹی بہت خوش رہنے والی ہے میرے ساتھ۔ کہتے ہی زاویہ گاڑی کھلے شیشے کی طرف بڑھاتا جا دیدم دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کری تھی۔ اس نے کھلے دروازے سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنی طرف کھینچا تھا، پھر گلشن بائی کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی گال کے پاس لب لے جا کر اس کی گال کو دانتوں تلے زور سے دبایا تھا کہ وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ اس نے درد کی شدت سے بلبلاتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کیا تھا، مگر وہ پوری شدت سے دانت گاڑے جب اسے دور ہوا تو اس کی سفید گال پر اس کے دانتوں کے نشانوں سے خون رس رہا تھا۔ پل بھر میں اس کی تکلیف دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو اپنا دیا زخم دیکھ کر زاویہ کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر پھر وہ اپنے خول میں واپس آ گیا تھا۔ اس کی گال کو انگوٹھے سے ہلکا سا سہلاتے ہوئے زاویہ نے گلشن بائی کی طرف مڑ کر دیکھا، پھر مسکرا کر آنکھ ماری اور دوسری طرف سے گاڑی میں جا کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نکالو مجھے باہر ورنہ میں چلتی گاڑی سے کود پڑوں گی۔ بیبی کود جاؤ، اگر دروازہ کھل جائے تو۔ میں کسی کو کہنے والا بنوں کہ میرے لیے کسی حسین لڑکی نے جان دی تھی، اس نے سیٹی بجاتے ہوئے کہا۔ اس وقت دیدم کو اس کی بات سن کر اتنا غصہ آیا کہ اس کے دل میں کیا کہ اس کا خون کر دے۔ پھر اس نے گیئر پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن کسی جنگلی بلی کی طرح چبھانے شروع کر دیے تھے۔ تبھی زاویہ نے غصے سے اس کے نازک ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اتنی بدتمیزیاں برداشت کرنے کا قائل نہیں میں، اپنے ہاتھوں کو جتنا ہو سکتا ہے کنٹرول میں رکھنا میرے سامنے۔ اور آج کے بعد اس نے ان کے دونوں ہاتھوں پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی انگلیوں کی ہڈیاں چٹک جائیں، اس خیال کے تحت زاویہ نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑا تھا۔ کاش جیسا تمہارا وجود نازک ہے ویسے تمہارا مزاج بھی نازک اور معصوم ہوتا، نفرت سے اس کی طرف دیکھتے اس نے کہا تھا۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی۔ اس نے انمتا کو سائیڈ کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ دروازہ کھلے پر بٹس سے مس نہ ہوئی تو آہا نے ہاتھ بڑھا کر اسے اتارنا چاہا تو ڈر کے مارے پیچھے ہوتے اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ اب کی بار اس نے کچھ غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اپنے فلور کا بٹن دبا کر اس کا ہاتھ یوں ہی پکڑے لفٹ میں کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد لفٹ رکی۔ وہ اس لیے اپنے فلیٹ کے سامنے آیا تھا۔ ڈور اوپن کر کے اس کی طرف دیکھا جو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو، زبردستی کروں تمہارے ساتھ؟ اس بار آہان کو غصہ آیا تھا۔ وہ جو پوری رات اس کے لیے خوارا ہوتا، وہ اپنے ہر رد عمل سے اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ جب ہی ہاتھ بڑھا کر اسے اندر کی طرف کھینچا اور ڈور لاک کیا۔ اور کر بھی کیا سکتے ہو، تم یہی تو کر رہے ہو، اتنی دیر سے کھولو دروازہ، مجھے نکالو باہر۔ وہ بہتے آنسو سے اس کے سامنے دروازے کی طرف جاتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں تمہیں یہاں اس شور شرابے اور ڈرامے کے لیے نہیں لایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ گہرے دکھ سے گزر رہی ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں تم نے 11 کروڑ مجھ پر صرف میرے ایک آنسو دیکھنے کے لیے ضائع نہیں کیے، مگر میں تمہیں ایک بات اچھے سے سمجھا دوں مسٹر، کسی گوشت کے ٹکڑے سے دل بہلا کر تم چند منٹوں کی آسائش پا کر کبھی سرخرو نہیں ہو سکو گے۔ سیریسلی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میر آہان افندی تمہیں یہاں اپنی سیٹسفیکیشن کے لیے لایا ہے؟ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ جتنا میں چاہ رہا ہوں تم سب کچھ اپنا دماغ سے نکالو، اتنا ہی تم میرے غصے کو بڑا ہوا دے رہی ہو۔ تم یہاں مجھے بہن بنانے کے لیے لائے ہو۔ اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ انمتا۔ اس کا دل چاہتا کہ اس کا رکھ کر تھپڑ لگا دے۔ اس کی بات پر اس کے لفظوں نے پل پر اس کی دل کی سلطنت ہلا کے رکھ دی تھی۔ رک کیوں گئے؟ مارو آہان افندی، دکھاؤ اپنی اصلیت مجھے۔ یہ تم وہاں چھت پر ہمدردی کر رہے تھے وہ ڈھونگ تھا، تمہاری پارسائی تمہیں اس کوٹھے پہ نہیں بلکہ تمہاری غلیظ نفی نہیں بلکہ تم مجھ پر پھر سے صفائی لوگ گئی تو بتاؤ تم وہاں کیا لینے گئے تھے؟ اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ تم حد سے بڑھتی ہو رہی ہو انمتا۔ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ کون؟ میں حد سے بڑھ رہی ہوں؟ چلو میر آہان افندی، میں تو حد سے بڑی، تم تو انسانیت کے درجے سے ہی گر گئے۔ چلو شروع کرو، حاصل کرو اپنا مقصد۔ میں بھی دیکھتی ہوں ان 10 دنوں میں تم کس حد تک کھیل لیتے ہو اس گوشت کے ٹکڑے سے۔ کم آن، سٹارٹ کرو۔ اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنے گرد لپٹی چادر اتار کے اس کے قدموں میں پھینکی تھی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی پیٹ پر رکھا جہاں سے قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کی صبر کی حد دیکھ رہا تھا اور اس کی اذیت کی انتہا۔ وہ اس حد تک بے بس ہو چکی تھی کہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا خود کا بھی صبر آزما رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وصول کرو نا اپنی رقم مجھ سے سود سمیت۔ بس بہت ہو گیا۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ انمتا کی روح کام کی تھی۔ ضبط کی حد کو چھوتے ہوئے اس نے ہاتھ پکڑ کر گھما کے اس کی پشت کو سینے سے لگایا تھا، پھر اس کے سارے بال اس کے دوسرے کندھے پر رکھتے اس کے کاندھے پر ٹوڑی رکھی تھی اور پھر لب اس کے کان کے پاس لایا تھا، جبکہ ہاتھ اس کی پیٹھ پر اس کے زخم والی جگہ پر تھا۔ وہ اس کے سینے کے پاس ساتھ لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی اور وجود اس کا لرز رہا تھا۔ بس اب مزید ایک لفظ نہیں، تم سے سیٹسفیکیشن حاصل کرنی ہوتی تو تمہیں مجھے یہاں لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کوٹھے پر چند گھنٹے میں تمہارے اس بے ضرر سے وجود سے کھیل کر تمہیں تمہاری اوقات یاد کروا سکتا تھا۔ میں تمہیں کیا لگتا ہے کہ بہت خوبصورت ہو تم
یہ تم پر مر مٹا ہوں، تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا۔ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے اس پر سوٹ پھونک رہا تھا۔ نہیں انمتا، خوبصورتی نے متاثر کرنا ہوتا تو مجھے تو 6 سال سے کسی بنجر زمین کی طرح بے آب نہ ہوتا۔ تمہاری تکلیف، تمہارے درد، تمہاری ان آنکھوں کی چمک اور تمہارے چہرے کی معصومیت نے اس پتھر دل انسان کی بنجر زمین کو آب کیا ہے۔ نہ ہی میں نفس پرست ہوں، نہ ہی گھٹیا مرد۔ اس نے غصے سے کرتے ہوئے اس کے پیٹ پر رکھے اپنے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا تھا اور بری طرح درد کی شدت سے مچ لی تھی۔ اس کی گرم سلگتی سانسوں کا لمس کے کان کی کندھے کو کسی گرم بھٹی کی طرح جھلسا رہا تھا۔ مگر مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ غلط کیا میں نے تم پر اپنا سکون لٹا کر۔ مجھے لگا وہاں تم سیف نہیں، تمہاری معصومیت چھن جائے گی، حیوان بن کر کوئی تمہاری سانسیں چھین لے گا تو آہن افندی خود کو کبھی نہیں معاف کر پائے گا۔ تم اس ہمدردی کے قابل نہیں ہو، تم تو خود اپنے آپ پر رحم نہیں کھانا چاہتی۔ غصے کی شدت سے آہن کا خون کھول رہا تھا۔ زخم پر دباؤ بڑھاتے اسے احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ درد کی انتہا کو چھوتی کب کی ہوش سے بیگانہ ہو گئی ہے۔ میں تم سے بات انمتا اسے اپنی باہوں میں جھولتے بے جان دیکھتے وہ بری طرح پریشان ہوا تھا۔ جب ہی اسے باہوں میں اٹھاتے بیڈ روم کی طرف لے گیا۔ انمتا اٹھو، اس کے چہرے کو تھپتھپاتے وہ کسی خوف کے زیر اثر بے حد پریشان ہوا تھا۔ آئی ایم سوری یار، سوری، اب نہیں ہرٹ کروں گا، پلیز آنکھیں کھولو۔ اس کی لمبی پلکوں کی لرزش پر اس نے بے اختیار سکون کا سانس لیا تھا۔ اسے پوری آنکھیں کھولتے اسے اپنے اوپر جھک کے دیکھا تو خوف سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے منگواتا ہوں۔ اس نے پیچھے ہو کر اسے اٹھایا۔ ڈو ناٹ ٹچ می، اس نے اس کے پاس اٹھتے ہوئے کہا۔ اگر مجھ پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ مگر انمتا پلیز لیو می الون، وہ پوری طرح جان سے چیخی تھی۔ آہان اٹھ کے کمرے سے باہر آ گیا اور اس کے جاتے ہی اس نے دروازے کو لاک لگایا تھا اور پھر کتنی دیر آہان کو اس کے چیخ کر رونے کی آوازیں باہر تک سنائی دیتی رہی تھی۔ چلو اترو نیچے، اور خبردار یہاں کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش نہیں۔ ڈرامہ کیا، میں چیخ کر تمہارا پورا گھر اکٹھا کر دوں گی۔ زاویہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی بولتی بند کی تھی، پھر اسے باہوں میں اٹھایا تھا۔ چوکیدار کی طرف گاڑی کی چابی پھینکتے ہوئے اس کی طرف اٹھائے گیسٹ روم میں لے آیا تھا اور روم میں لا کر اس نے غصے سے اس بیڈ پر پٹکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ابھی کو پتا چل گیا کہ وہ اسے زبردستی اٹھا کے لایا ہے تو وہ غصہ کریں گے۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم یہ زور زبردستی سے میں تم سے نکاح کروں گی؟ کسی بھی صورت نہیں، چلاؤ مت۔ اگر اپنی بہن کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو صبح 11 بجے نکاح نامے پر سائن کر دینا، ورنہ اس کی موت پر رونے کے لیے تیار رہنا۔ زاویہ نے ہوا میں تیر مارتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کہا تم گھٹیا انسان؟ انمتا تمہارے پاس ہے؟ اس نے آگے بڑھ کے اس کے گریبان پکڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس سویٹ ہارٹ، اب چپ چاپ بغیر کسی ڈرامے کے پیپرز پر سائن کر دینا، ورنہ اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کو خود کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ تم انتہائی نیچ ہو، اس کے سینے پر مکہ مساتے ہوئے اس نے کہا۔ تبھی زاویہ نے اس کی تھوڑی سی پکڑ کے اس کے سر پہ اوپر کر کے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ اب تمہاری بہن کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، شور کیا یا پھر نکاح سے انکار کیا تو اگلے انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ وہ الٹے قدموں دروازہ باہر سے لاک کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ گلشن بائی کسی بڑبڑاتی چڑیا کی طرح بڑبڑا رہی تھی، اتنی موٹی اسامی ہاتھوں سے نکل گئی تھی، اس کا خون کھول رہا تھا اور پھر اس کے شیطانی دماغ نے ایک نیا چال بنا تھا اور اپنے ہی پلان پر وہ دل کھول کر ہنسی تھی۔